सो देयर वर मेनी एप्स, तो बहुत सारे एप्स आते हैं जिसमें ये एज अ गेम्स थे. सो यू कैन यूज दैट ऐप. एप्टीट्यूड लर्निंग एप्स आते हैं. सो यू हैव टू गेट मैक्सिमम आउट ऑफ. तो जो जो पढ़ा है यू हैव टू टेलर इन सच अ वे कि वो ज़्यादा भी ना हो कि बहुत ज़्यादा भरा हो रिज्यूमे, बट एवरीथिंग शुड बी देयर. नहीं कर पाया, किसी रीजन से नहीं हो पाया, सो अब आपकी बारी है हार्ड वर्क. जब पता हो मंजिल मिलनी ही, जब पता हो मंजिल मिलनी ही है तो रास्ते खुद ब खुद मिल जाते हैं. और जब हौसला हो उड़ना ही, जब हौसला हो उड़ना ही है तो पर मेहनत के निकल आते हैं. और जब विश्वास हो चलना ही है, जब विश्वास हो चलना ही है तो कांटे भी फूल बन जाते हैं. कि जब जुनून हो कि करना ही है तो यकीन मानो दोस्तों, हम जैसे भी कमाल कर जाते हैं, हम जैसे भी कमाल कर जाते हैं. Hi everybody, welcome to VLSI Point. So I am very excited about today's video because this is the first podcast video of VLSI Point. And today we have Ananya with us, a very charming, very creative person. She has recently cracked Google interview for embedded software role. Also, she has completed her internship from Texas Instruments and got the PPO. So basically, Ananya had both the offers, software and VLSI, but finally she is going to join as a digital engineer in Texas Instruments. So this video is going to be very exciting for all those students who are willing to start career in VLSI. We are going to discuss each and everything related to your placement preparation, like how you have to learn different subjects, what kind of projects you should make, how to build resume, how to apply off campus, how to build strong connections on LinkedIn. Everything we are going to discuss in today's video. So watch complete video because half knowledge is dangerous. If you are watching my videos first time, then I am Shweta, research scholar at IIT Dhanbad. I am doing research in neuromorphic computing for Ministry of Electronics and Information Technology. If you are interested to do a podcast with me, then just write a mail and share your story. Me and my team will reach out to you and will plan an interesting podcast. So without any further delay, let's get started today's video. Tell us how your journey has started. So, first of all, hello everybody. I am Ananya from IIT Dhanbad. So, I am here in Electronics and Communication Engineering. I am a BTech student here. My journey started when I got selected in JEE and I got this college as an electronics engineer. And honestly, electronics was not my first choice, but in JEE counseling हमको वही मिलता है whichever our rank is. So rank के according मिलता है. So I got into electronics department, and then initially I was very confused कि should I opt my career in computer science or IT sector, or should I go in core electronics. But after a few years, and when I get more experience in the field, and when I saw everyone working, and the work was fascinating, so फिर my interest shifted towards the electronics sector. And then I interned at Texas Instruments, and then I got a pre-placement offer from them, and also I got selected for Google as an embedded software engineer. So yeah, so that was my journey till now, but I will be joining as digital engineer in Texas Instruments. That's a quite interesting thing, Ananya. You have both the offers in your hand, Google and Texas both, but you have chosen your core domain. Okay, Yeah, so we will discuss that in detail because many sure. students have this doubt whether they should go software choose करें या VLSI में जाएं. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट होता है. सो अनन्या, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आपकी जेई की प्रिपरेशन से. हाउ अबाउट दैट फेज? ओके, सो जेई का फेज आई थिंक हर स्टूडेंट की लाइफ में बहुत यूनिक होता है, बिकॉज मोस्टली ये स्टार्ट होता है आफ्टर क्लास 10th. सो टिल क्लास 10th स्टूडेंट्स आर लाइक कि ठीक है, हम पेपर दे रहे हैं, पास हो रहे हैं, अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, वी ऑल आर टॉपर्स. बट वेन स्टूडेंट स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर जेई, जब लोग जाते हैं, कोटा जाते हैं, कोचिंग ज्वाइन करते हैं, देन दे गेट टू सी कि हर कॉलोनी में एक टॉपर है. सो दे गेट टू सी अ न्यू वर्ल्ड. कि जब मैं क्लास में फर्स्ट आ रही थी, एंड अचानक से आई हैव एवरीवन जो क्लास में फर्स्ट आ रहे थे. ग्राउंड रियलिटी पता या चलती ग्राउंड है. रियलिटी. सो श्वेता, आई थिंक जेई की जर्नी सबके लिए बहुत यूनिक होती है, बिकॉज पहले सब टॉपर होते हैं अपनी अपनी क्लास के 10th तक, एंड देन दे गॉट टू सी कि अब हर कॉलोनी में एक टॉपर है, एंड everywhere there are toppers when they join coaching, and they started giving exams and everything for preparation. So my JEE journey was like that only.
बट वॉज लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम मेनी स्टूडेंट्स, क्योंकि ज़्यादातर लोग कोचिंग जाते हैं. आई वॉज इन अ बोर्डिंग स्कूल. सो मेरे स्कूल में ऐसा था कि इन स्कूल ओनली हमको आईआईटी का भी पढ़ाया जाता था, हमको एनसीईआरटी भी पढ़ाया जाता था. लाइक whole curriculum was designed कि बच्चा IIT NCERT सब कुछ. So that was a little different and I think it helped me a lot because मैं वहाँ 9th class से थी and I started giving competitive exams from that time only, like NTSC and many exams. So my journey was little different and little tough, but I think it was worth it. And I would say कि if a student is someone जिसको ज़्यादा self control नहीं है and उसका से माइंड भटकता है पढ़ाई से एंड दे वर लाइक कि ठीक है हो जाएगा, सो आई थिंक दे शुड जॉइन अ बोर्डिंग स्कूल काइंड ऑफ थिंग्स विच आर वेरी यूनिक और अभी आ रहे हैं, सो दे कैन जॉइन डिसिप्लिन, दैट. एक या अच्छा डिसिप्लिन डेवलप होता है. मिल जाता है एग्जैक्टली. हम्म. सो दैट वाज माय थिंग एंड देन फ्रॉम देयर आई गॉट सिलेक्टेड इन जेई मेंस और फिर एडवांस में भी. सो एवरीथिंग वाज फ्रॉम माय स्कूल ओनली, मैक्रोविजन एकेडमी. सो इट ओके. वाज सो नाइस. आईआईटी में आने के बाद कुछ डिफरेंस फील हुआ? कैसा लगा आईआईटी कैंपस में आके? Okay, so it was really satisfying, I would say, because it was a dream. Everyone जो भी maths लेता है, everyone has a dream कि हम IIT में जाएं एक दिन. या So एक्चुअली. so it was, I would say, very satisfying. And यहाँ पे you'll get a vibe. Like I don't know about other college, but in IITs you'll get a vibe. Everyone is topper, everyone is at your IQ level and at your mental age, so you have a lot of opportunities to learn, to grow, to connect. And बहुत लोगों को लगता है कि IIT is only for people who study a lot, bookworms के लिए है. बट ऐसा नहीं है, ऐसा काफी नहीं सारी है. अदर अपॉर्चुनिटीज भी मिलती God, हैं. सो हैव exactly. यू जॉइंड एनी क्लब? या एक्चुअली मेरा इंटरेस्ट था हिंदी पोएट्री में, सो आई जॉइंड अ क्लब फॉर दैट. एंड ऑल्सो मेरा सोशल वर्क में थोड़ा इंटरेस्ट रहता है, तो आई जॉइंड अ एनजीओ इन माई कॉलेज. अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ बहुत अपॉर्चुनिटीज होती है. लाइक पीपल वुड बी सरप्राइज कि लोग जेई क्लियर करके आईआईटी आते हैं एंड देन they go for videography. And like one of my friend went for videography, he is not interested in any placement or something, he want to make his career in videography and make videos, and like he want to go in that part. So like it's not like you come to IIT तो आपको सिर्फ स्टडी करना है या कुछ ऐसे कॉर्पोरेट में ही जाना है. there are a lot of opportunities. So Ananya, when you have started your preparation for internships, like first year तो क्या है, explore करने में चला जाता है. Then during second year और third year students थोड़ा सा serious होते हैं, and then लगता है कि अब placement के लिए prepare करना है. तो आपका ये phase कब start हुआ था? ओके, सो मेरा ये फेज स्टार्ट हुआ था आई गेस सेकेंड ईयर के मिड में. सो फर्स्ट ईयर एज यू सेड कि पूरा एक्सप्लोर करने में चला जाता है, और हम कोरोना बैच वाले थे तो हमारा फर्स्ट ईयर ऑनलाइन था, Okay. तो हम ज़्यादा एक्सप्लोर भी नहीं कर पाए थे. सो व्हेन वी केम टू कॉलेज तो सेकेंड ईयर में वी स्टार्टेड कि अच्छा इंटर्नशिप्स क्या होती हैं. एंड ज़्यादातर लोगों को पता है, नॉलेज भी नहीं होता है कि इंटर्नशिप में होता क्या है, कैसे सिलेक्शन होता है. और तो फिर मिड ऑफ द सेकेंड ईयर से वी स्टार्टेड टॉकिंग टू आवर सीनियर्स. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. कनेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और अपने सीनियर्स को जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज हर कॉलेज का अलग कल्चर होता है. अगर आप ऑन कैंपस इंटर्नशिप में बैठ रहे हैं तो हर कॉलेज की कुछ अलग क्राइटेरियाज होंगे, कुछ अलग रूल्स होंगे. तो ये सब चीज़ें आपको सिर्फ वही बता सकता है जो पहले बैठ चुका है. Yeah, So actually. yeah, talking to seniors is very important. So like luckily I have very good seniors, so उन्होंने मुझे पूरा process explain किया and then I started preparing for it. So CGPA is something very important. अगर आपका अच्छा CGPA है then you will get an opportunity to sit for the company. आप कितने भी capable हो, but आपको जब opportunity ही नहीं मिलेगा तो आप कुछ नहीं कर सकते, right? So CGPA is that door. CGPA is not कि जो आपकी कैपेबिलिटी बताता है कि आप कर सकते हो नहीं कर सकते हो. मेनी पीपल थिंक कि ठीक है सीजीपीए अच्छा नहीं है तो क्या हुआ, हमें आता तो बहुत है. या बट एक्चुअली मतलब देयर इज अ मिथ, कई सारे स्टूडेंट का ये मानना होता है कि सीजीपीए मैटर नहीं करता है, यू शुड हैव स्किल्स. बट आई तो थिंक बोथ द थिंग्स आर इम्पोर्टेंट, सीजीपीए एज वेल एज योर स्किल्स. या सीजीपीए इज द की टू द डोर. आपको अगर अंदर जाना है तो यू शुड हैव अ की, उसके बाद उस की का कोई काम नहीं है, आई वुड से. लेकिन जो डोर ओपन करने का काम है वो सीजीपीए करता है. यू विल गेट शॉर्ट लिस्टेड इन कंपनीज बेस्ड ऑन योर सीजीपीए. मैनी कंपनीज आर सीजीपीए रिक्वायरमेंट एंड आई वुड से
फॉर अ सेफ साइड 8 के ऊपर मेंटेन करना सीजीपीए इज वेरी इंपॉर्टेंट, और फर्स्ट ईयर में ये हो सकता है. सो स्टूडेंट शुड फोकस ऑन मेंटेनिंग सीजीपीए इन फर्स्ट ईयर में. आई डोंट थिंक सो पीपल चूज कि उन्हें आगे क्या करना है, बिकॉज वो बिल्कुल जेई वाले फेज से आए होते हैं. सो इट्स वेरी इजी टू मेंटेन, और अगर आपने पहले 2 साल में सीजीपीए मेंटेन कर लिया तो आखिरी 2 साल यू कैन टोटली गिव टू योर इंटर्नशिप्स एंड प्लेसमेंट्स, क्योंकि फिर सीजीपीए का जो वेरिएशन होता है वो बहुत कम हो जाता है. एंड इट्स फैक्ट कि धीरे धीरे लोगों का इंटरेस्ट पढ़ाई में कम हो जाता है. सो अगर रिलेटिव ग्रेडिंग है, सो ऑटोमेटिकली पीपल विल डू लेस, सो सीजीपीए मेंटेन हो जाएगा. सो फर्स्ट 2 years आई थिंक इज वेरी क्रूशियल, और अगर आप उसमें सीजीपीए मेंटेन कर लेते हैं तो आपको इंटर्नशिप्स और प्लेसमेंट्स में कोई दिक्कत नहीं होगी. सो दैट इज या सो हाउ यू वेयर मैनेजिंग कि अब आपने इंटर्नशिप के लिए भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, साथ में आपका एकेडमिक्स भी चल रहा होगा, तो कैसे मैनेज करते थे आप दोनों चीजों को? ओके. सो जब मैंने दोनों प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी तो व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज कि मैं अपने फ्री टाइम में आई यूज्ड टू लुक फॉर अदर सोर्सेज जो भी मुझे प्रिपेयर करना है. जैसे इनिशियली आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर सॉफ्टवेयर रोल्स, so I was preparing for data structures. So in my free time after college and after classes, I used to just dedicate 1 hour or 2 hour for DSA or any skill that you want to prepare, और बाकी आप अपना एकेडमिक में भी फोकस करो. और फॉर द स्टूडेंट्स हु आर गोइंग इन कोर इट्स वेरी इजी, बिकॉज उनके जो सिलेबस है दैट इज ओनली कमिंग इन इंटर्नशिप्स एंड या इंटरव्यूज. एक्चुअली सो दे डोंट हैव टू डू डबल हसल. बस जो उनका सिलेबस है उनको उसको अच्छे से और थोड़ा डीप में पढ़ना है. सो आई थिंक अगर कोई स्टूडेंट क्लास में अटेंटिव रह रहा है, अपने करिकुलम को अच्छे से फॉलो कर रहा है, so it would be really good for his internships or placement. बहुत enough है. So that's what I did. I was preparing for software, so मैं सॉफ्टवेयर की चीज़ें अलग से पढ़ती थी, बट जो कोर नॉलेज थी वो मैं अपने जो करिकुलम था उसको फॉलो करती थी. एंड आई यूज टू लाइक, मेरे साथ ऐसा है कि एनी सब्जेक्ट अगर मैं कुछ पढ़ रही हूँ तो या तो मैं समझ के पढ़ूंगी या तो फिर बिल्कुल ही छोड़ दूंगी. इफ आई एम गेटिंग गुड ग्रेड्स देन आई नो दैट सब्जेक्ट. तो वो चीज़ मेरी ग्रिप रहती थी कि अगर मुझे आता है सो आई एम द बेस्ट, नहीं आता तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. सो दैट वाज माय थिंग. तो मुझे कोई चीज़ अच्छी लगती थी तो ये मैं करती थी कि मेरे कोर के सब्जेक्ट को मुझे इंटरेस्ट से पढ़ती थी और डीप में पढ़ती थी. जब इंटर्नशिप्स का टाइम आया ना, सो आई डोंट हैव टू प्रिपेयर अलग से फॉर सब्जेक्ट्स. सो दैट वाज माय स्ट्रैटेजी. तो जब टेक्सास इंस्ट्रूमेंट के लिए यू वेयर प्रिपेयरिंग, सो दैट टाइम व्हाट ऑल सब्जेक्ट यू हैव स्टडीड? Okay, so I was actually Texas Instrument में क्या होता है, there is first an OLT, तो ऑनलाइन लिस्टिंग टेस्ट. तो उसमें दे आस्क एनालॉग डिजिटल या जिस भी रोल के लिए आई है आपके पास कंपनी वो. सो आई गॉट सिलेक्टेड फॉर डिजिटल रोल. So I studied like basics only, microprocessors, microcontrollers, starting timing analysis and timing diagrams, logic gates, and different connections of logic gates and how you can make complex circuits, flip flops. All these things are really important. A little bit about computer architecture, Mealy machine, Moore machine, all these things are important. So these were the topics that I studied. ये सब बेसिकली बेसिक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में कवर हो जाता है. या एंड सम थिंग्स मीले मशीन, मूरे मशीन, एफएसएम, दैट थिंग्स यू हैव टू लुक इन डीप. सो वो अलग से देखना पड़ेगा. ठीक है, तो व्हाट रिसोर्सेस यू हैव रेफर्ड फॉर द प्रिपरेशन? Okay, so I would say static timing analysis के लिए there are many YouTube channels, और you can just search in YouTube और playlist आएगा. So STA is something जिसका एक वीडियो देखकर आप नहीं कर सकते. तो आई वुड रिकमेंड कि एक प्लेलिस्ट फॉलो करिए. फिर उस प्लेलिस्ट से आपको जो भी प्लेलिस्ट आपको अच्छी लग रही है, क्योंकि सबकी अलग अलग होती है. सम जैसे मैं हूँ, मुझे इलस्ट्रेशंस बहुत पसंद है, तो जिस भी वीडियो में ज़्यादा इलस्ट्रेशंस होगा आई लुक इनटू दैट. कुछ लोग होते हैं जिनको कंटेंट चाहिए होता है, तो सबका अलग अलग होता है. तो आई वुड से कि आप प्लेलिस्ट फॉलो करिए, ऐसे बीच बीच से कुछ मत उठाइए, बिकॉज इट्स अ डिफरेंट सब्जेक्ट ऑल टुगेदर, स्टैटिक टाइमिंग एनालिसिस, राइट. सो उसके लिए ये था. एंड नेसो एकेडमी आई वुड से इज़ अ वेरी गुड चैनल जो आपको सब कुछ बेसिक से सिखाता है, एंड इट्स रियली हेल्पफुल. और अपार्ट फ्रॉम दैट आई यूज चैट जीपीटी अलॉट, और उस टाइम पे आई यूज गूगल अलॉट. सो एनी कॉन्सेप्ट इफ यू वांट टू लर्न, फर्स्ट पहला स्टेप होता है कि यू गेट द रोड मैप
कि कैसे कैसे उसको पढ़ना है, ठीक है। आप वंस यू गॉट रोड मैप, तो आप क्या करो कि उस एक एक टॉपिक को सर्च करो एंड यू विल स्टडी। तो उससे क्या होता है, आपको डीप में नॉलेज मिल जाती है, जितना आपको चाहना है उतना डीप में आप पढ़ सकते हो। बट आई वुड से बिना रोड मैप के पढ़ना इज वेरी डिफिकल्ट, सो आई या डिड दैट। तो आपने ये चीजें बहुत अच्छी बताई। एक्चुअली मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैव दिस डाउट कि कंप्लीट नॉलेज कहाँ से लें। वो कंटिन्यू पढ़ते जा रहे हैं बट दे डोंट हैव द कॉन्फिडेंस कि अब कंप्लीट हो गया, मैंने सारी चीजें पढ़ ली। सो दिस इज द इशू। सो व्हाट दे हैव टू डू, फर्स्ट मेक द रोड मैप एंड देन जस्ट फॉलो ईच एंड एवरी टॉपिक। आप गूगल एग्जैक्ट रेफर कर सकते हो, आप चैट जीपीटी से पढ़ सकते हो, आप वीडियोस से पढ़ सकते हो, बट यू हैव टू कंप्लीट द इंटायर एग्जैक्टली फ्लो। या yeah. So ओके। that's very important. That's why I say talk to people. uh, like आप किसी YouTube पे भी जाओगे, you get the podcast, you get the video. So आप, ये सब लोगों को लगता है कि ये टाइम पास हम क्यों करें, हम सीधे पढ़ाई करें, बट दिस इज नॉट द टाइम पास, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। पहले आपको पता होना चाहिए आपको क्या पढ़ना है, देन ओनली यू कैन स्टडी। सो दैट्स वेरी So this इंपॉर्टेंट। is about the STA. And what about the digital electronics, then your FSM part? For everything I did the same thing. I made a roadmap for everything, like total. So STA ke liye I referred NPTEL lectures were also good for Verilog. If someone is interested in Verilog or digital mein, Verilog is very important. So if someone wants to run NPTEL के बहुत सारे अच्छे lectures हैं एंड दे आर लाइक लिटरली गुड। अगर आप वो पूरा कर लेते हो तो मुझे आज तक उसके ऊपर जाने की ज्यादा नीड नहीं। सो आई वुड से दैट इज इनफ। तो ऐसे आप हर टॉपिक का निकाल सकते हो और अपने कोर्स करिकुलम को फॉलो करो। लाइक मैं अपने कोर्स करिकुलम को पूरा फॉलो कर, तो उसमें सब मिल ही जाता है। व्हेन प्रोफेसर टीच, तो मैं आई फॉलो एवरीथिंग। सो उसमें मोस्टली दे टीच एवरीथिंग, सो यू डोंट हैव टू पैनिक कि मुझे बहुत सारा पढ़ना है, बिकॉज Yes. दैट्स मेनी स्टूडेंट पैनिक। सो आई थिंक दैट्स इम्पोर्टेंट। Okay, Ananya. So in this way, you have prepared for the या internship, and finally you have crackड that TI interview. So किस टाइप के questions उन्होंने पूछे इंटरव्यू में? Okay, so my interview experience was really nice, क्योंकि 40 मिनट का इंटरव्यू था। और वन थिंग आई वुड लाइक टू मेंशन इज कि देयर वर सम टॉपिक्स जो इंटरव्यूअर ने पूछे एंड आई वाज हैविंग नो आइडिया अबाउट इट, ठीक है। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो मेरे करिकुलम में था ही नहीं, लाइक उस समय तक हमें वो पढ़ाया ही नहीं गया था एंड आई यूज्ड टू फॉलो माय करिकुलम। सो instead of panicking, I just told him that this is not part of syllabus yet. I think it will come in next semester, so I can't answer it. So that was a very good, मतलब उन लोगों ने उसको very positively लिया and they were like okay, I'll ask from another topic. So आपको panic होने की जरूरत नहीं है, because you not, मतलब आपको सब कुछ जानना important नहीं होता है, जो आप Yes, जानते हो yes. उसको Because अच्छे से that जानना time important। you were a second year student. तो Yeah, being a exactly. second year student आपको सारी चीजें पता नहीं होंगी, बहुत नहीं हो बेसिक सकता। पार्ट कवर होता है। लाइक डिजिटल एग्जैक्टली। इलेक्ट्रॉनिक्स, नेटवर्क थ्योरी, ऐसे कुछ बेसिक सब्जेक्ट से हम स्टार्ट हाँ। करते हैं सेकेंड ईयर से। श्योर। तो वो इंटरव्यूअर समझता है, लाइक इंटरव्यूअर को पता होता है, वहां पे इंटरव्यूअर इज नॉट सिटिंग टू इवेल्युएट आपको कितना आता है। वो इस बात पे है कि आप कितना सीख सकते हो। सी आई विल टेल यू वन थिंग, जब मैं इंडस्ट्री में गई, वॉट एवर आई स्टडीड टिल नाउ वॉज ऑफ नो यूज। जब मैं इंटर्नशिप का प्रोजेक्ट करने गई, वो जो काम था ना, वो मैंने अभी फाइनल ईयर में पढ़ा है अपने कॉलेज में। तो उस टाइम पे एवरीथिंग वाज न्यू। सो ऐसे बहुत बार होता है कि यू गेट टू वर्क ऑन सम न्यू टेक्नोलॉजीज, उस टाइम पे यू हैव टू लर्न। सो वहाँ इंटरव्यूअर ये देखने बैठा है कि आप कितने अच्छे से सीखे हो, आप कितने अच्छे से सीख सकते हो, आप कितने अच्छे से सोच सकते हो। तो दैट वाज आई थिंक द बेसिक मोटिव ऑफ द इंटरव्यू। तो उनने मुझसे एक टाइमिंग एनालिसिस एसटीए का क्वेश्चन पूछा, और उसमें डिले विले दिया हुआ था गेट्स में, और डिले भी हमने नहीं पढ़ा था बट मुझे बेसिक आइडिया था, तो मैंने उसको किया एंड टाइमिंग डायग्राम बनाना था। तो उसमें भी दे वर इंटरेस्टेड कि तुमने ये कैसे क्रैक किया, लाइक व्हाई यू हैव मेड दिस डायग्राम एंड यू हैव टू एक्सप्लेन एवरी बिट, वॉट एवर यू आर थिंकिंग इन योर माइंड यू हैव टू जस्ट से, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो फिर वो एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन उनने पजल का पूछा था, इट वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग पजल, और मैंने पजल कभी देखा नहीं था, मुझे पता भी नहीं था कि इंटरव्यू राउंड में पजल आएगा। सो पजल ऐसे था कि यू हैव 100 कॉइन्स, और उसमें से शायद 10 10 की पोटली बनी हुई है या ऐसे कुछ तो था, और 10 कॉइन्स आर डिफेक्टिव।
ऐसे कुछ था कि 1 कॉइन इज डिफेक्टिव, और आपको मिनिमम आप कितनी बार में पता लगा सकते हो कि कौन सा कॉइन डिफेक्टिव है, कितनी बार वे कर सकते हो आप। एक बार सबको वे कर सकते हो, तो आप कैसे पता लगाओगे कितना कॉइन्स डिफेक्ट, तो कौन सा कॉइन डिफेक्टिव है। सो आई वाज लाइक कि एक बार में तो कैसे ही पता चलेगा कि कौन सी पोटली का कॉइन डिफेक्टिव है। मतलब ऐसे 10-10 का बंडल दिया हुआ है आपको हाथ में, अब आपको बताना है कौन सी पोटली का, और आप एक ही बार सब पे कर सकते। तो फिर काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद आई गॉट टू द सॉल्यूशन। ईज़ी था, वो अरिथमेटिक मीन लगा के करना होता है, इट्स अ वेरी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम, पर मैंने वो कभी देखा नहीं था। तो इंटरव्यूअर्स ये सब पूछते हैं, मतलब कोर का रोल था, बट दे आस्क्ड मी पजल्स, तो उस पे बहुत टाइम गया था। So apart from core subjects, students जी। should learn these puzzle kind of questions also. एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए वो ऑनलाइन लिस्टिंग टेस्ट में भी एक एप्टीट्यूड राउंड होता है, एप्टीट्यूड होता है। सो एप्टीट्यूड भी इसलिए होता है टू चेक योर थिंकिंग कैपेसिटीज, क्योंकि उसमें भी मोर और लेस इट्स अ पजल। अब तो उसके मतलब बहुत सारे आपको सॉल्यूशंस और फॉर्मूलेज मिल जाएंगे, बट इवन इफ यू डोंट नो द फॉर्मूलाज यू कैन क्रैक इट विथ योर ब्रेन। सो दैट्स द मेन पॉइंट ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट। सो पजल्स वर देयर। उसके बाद एक फॉल्टी लाइन का क्वेश्चन था, दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एक डायग्राम दिया हुआ था एंड यू हैव टू टेल कि क्या इनपुट देने से अगर कोई भी एक लाइट फॉल्टी है तो वो हमें पता चल जाएगी। सो उसमें कुछ सेट ऑफ इनपुट्स देने से, तो जैसे अगर कुछ इनपुट दिया, कुछ आउटपुट आया, तो अगर ये आउटपुट आना चाहिए, और अगर गेट्स को देखें, पर अगर कोई एक गेट फॉल्टी है तो क्या आउटपुट में चेंज आएगा। सो इट वाज ऑल अबाउट एनालिसिस ऑफ द Yes. सर्किट। अगेन आई वुड से कि ये सिर्फ मेंटल गेम है, लाइक यू हैव टू, कॉन्सेप्ट सबको पता होता है। एंड गेट का काम, एंड गेट था, और गेट था, और आई गेस नॉट गेट था, मतलब गेट्स वर वेरी सिंपल, सर्किट वाज आल्सो सिंपल, बट नाउ योर माइंड शुड वर्क कि कौन सा इनपुट देना चाहिए, कौन सा नहीं देना चाहिए। तो ऑल दीज थिंग्स, दैट थिंग यू हैव टू प्रिपेयर फॉर, मतलब अपार्ट फ्रॉम योर कोर नॉलेज आल्सो यू हैव तो टू नो व्हाट थोड़ी आर सी लॉजिकल थिंकिंग डेवलप करनी होगी, दैट्स एग्जैक्टली, रिक्वायर्ड. Okay. So एग्जैक्टली। Ananya, any specific resource that students can prefer to prepare these puzzles kinds of question? I think there are many apps. So I think my friend used it. So there were many apps. तो बहुत सारे apps आते हैं जिसमें ये as a games देते हैं. So you can use that app. Aptitude learning apps आते हैं. So you can use that apps. तो जब आप free time में हो या game खेल रहे हो, just app खोलकर आप you solve the puzzle. So you'll just ये सब develop होगा. और मैं कहूँगी जैसे मैंने डीएसए प्रिपेयर किया था, एंड आई थिंक हर स्टूडेंट को एक ना एक कोडिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, तो दिस इज द मस्ट। क्योंकि आप वेरीलॉग देख लो, आप इंडस्ट्री में जाओगे तो आपकी जो टूल की लैंग्वेज होगी, टूल कमांड लैंग्वेज टीसीएल, वो आपको करना पड़ेगा। अगर आप लिनक्स पे काम करते हो तो आपको यूनिक्स, शेल, पर्ल, ये लैंग्वेजेस आनी पड़ेगी। तो लैंग्वेजेस आर एवरीवेयर, बट एक लैंग्वेज अगर आप सीख लोगे तो यू विल नो कि हम दूसरी लैंग्वेज में से कैसे कन्वर्ट, फिर तो ग्रामर ही बचता है, वंस यू नो या द। एटलीस्ट लॉजिक क्लियर हो जाता है अगर आपने एक हाँ, लैंग्वेज भी सीख ली, तो उसके बाद सिर्फ डेटा एग्जैक्टली, टाइप्स डिफरेंट होता है. डिफरेंट होते हैं, तो सिर्फ ग्रामर डिफरेंट होता है। तो एक लैंग्वेज सबको आनी चाहिए, और आई विल से बेसिक डेटा स्ट्रक्चर आना चाहिए। उससे आपकी बहुत ज़्यादा लॉजिकल थिंकिंग अपडेट होती है, क्योंकि उसमें भी यू गेट क्वेश्चंस लाइक पजल। सो उसमें आपकी लॉजिकल थिंकिंग और आपकी डीबगिंग जो होता है ना, वो बहुत इंप्रूव होता है डेटा स्ट्रक्चर से। ऑल्दो इट इज़ नॉट डायरेक्टली रिक्वायर्ड फॉर कोर रोल्स लाइक डिजिटल इंजीनियर, एनालॉग इंजीनियर, इसमें डायरेक्टली डेटा स्ट्रक्चर्स का नॉलेज नहीं चाहिए होता है। इफ यू आर गोइंग फॉर एम्बेडेड सॉफ्टवेयर रोल्स, वहाँ पे वो इंटरव्यू में भी डेटा स्ट्रक्चर्स वो पूछते हैं। थोड़ा सॉफ्टवेयर साइड पे हो जाता है, एग्जैक्टली, एम्बेडेड कर गया. तो हाँ, तो वो वहाँ पे पूछते हैं। तो अगर आप एम्बेडेड सॉफ्टवेयर रोल्स के लिए जा रहे हैं, तो देन यू हैव टू लर्न डेटा स्ट्रक्चर्स आल्सो। सो आई थिंक बेसिक डेटा स्ट्रक्चर एवरीवन कैन डू इन 20 डेज। सो अगर इतना आता है तो आई वुड से इट वुड रियली हेल्प देम। सो ये था। और फिर टीआई के एचआर राउंड में तो नॉर्मल एचआर क्वेश्चंस थे, लाइक देयर वाज नॉट सेपरेट एचआर राउंड, उसी राउंड में दे आस्क्ड क्वेश्चंस फॉर HR. Like the basic questions are कि if your team is there and you are the team leader, then how would you proceed, ऐसे करके आता है। या they ask about the timings कि अगर आपके पास time नहीं है and you have 5 tasks lined up, so how will you manage. So these are the basic HR questions. तो I think वो तो हम अपने गुडविल से भी आंसर कर सकते हैं। लाइक फॉर पर्सनली, फॉर माई सेल्फ, मैंने कभी ऐसे HR क्वेश्चंस करके कोई स्टडी मटेरियल नहीं रेफर किया। मैंने तो जो मेरा गुडविल था कि ऐसे करती मैंने वैसे ही किया।
सो बट हाँ, स्टूडेंट्स कैन रेफर गीक्स फॉर गीक्स, उस पे एचआर क्वेश्चंस और उसके लिखे लिखाए आंसर्स होते हैं। या तो यूट्यूब पजल, पे भी कई वीडियोस अवेलेबल हैं एचआर क्वेश्चंस को प्रिपेयर करने के लिए, सो दे कैन रेफर दैट। हाँ, और गीक्स फॉर गीक्स इज अ गुड साइट। अगर कुछ कोडिंग वोडिंग करना है या वेरीलॉग या कोई भी कॉन्सेप्ट्स है, सो गीक फॉर गीक्स पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन होता है। तो दैट्स अ गुड साइट, स्टूडेंट्स कैन रेफर। दैट वाज अबाउट माय टीआई इंटरव्यू, आई गेस। ओके, तो यहाँ पे हमारा टीआई वाला पार्ट हो गया। ठीक है, टीआई में एक चीज और थोड़ा सा मेंशन कर सकते हैं कि जो प्रोजेक्ट आपने किया है, वो प्रोजेक्ट किन टॉपिक्स पे था और उसमें फिर आपने काम क्या किया, लाइक कोडिंग का कोई काम था या थोड़ा बहुत बेसिक, उसके बारे में बताना। सो जब मैं टीआई में सिलेक्ट हुई इंटर्नशिप के लिए, तो द एक्सपीरियंस वाज वेरी पॉजिटिव। सो मेरा प्रोजेक्ट वाज, सी, इफ यू गो फॉर इंटर्नशिप इन कोर डोमेन, 2 मंथ्स इंटर्नशिप के लिए यू वोंट गेट अ बिग प्रोजेक्ट, दैट्स हम्म। एवरीवेयर। क्योंकि 2 महीने में बच्चा बहुत बड़ा नहीं कर सकता। कोर के प्रोजेक्ट्स आर वेरी लॉन्ग, लाइक it would take 6 months or 10 months to complete a project in code. So for 2 months internship, generally they gave either optimization for any method, or they give the verification part for any method, or they will give the automation part for any. So my work was in a automation part. So automation and optimization, I would say. तो मेरा काम था कि जो ईडीए टूल्स वी यूज देयर, उसको जो वेरिफिकेशन का, जैसे साइन ऑफ एक प्रोसेस होता है, तो साइन ऑफ के जो मेथड्स थे उनको इम्प्रूव करना था। तो उसमें थोड़ा सा ऑटोमेट करना था कि से इफ यूजर इज यूजिंग सम टूल्स और उसको कुछ एरर्स आ रहा है, so what happens is when you sign off anything, any chip or any design, so there are ton of error, like hundreds of errors will come, and sometimes it's 20,000 errors will come. But not each and every error is important, because every step पे हम कुछ पर्टिकुलर चीज चेक करते हैं, चिप का सब कुछ चेक नहीं करते हैं, तो उसका रेलेवेंट एरर है कौन सा नहीं है। सो माय पार्ट वाज स्टडिंग द टूल, स्टडिंग द प्रोसेस, और उसके बाद जो एरर्स आते हैं आई हैव टू कैटेगराइज देम, एंड देन आई हैव टू राइट स्क्रिप्ट्स टू ऑटोमेट होल प्रोसेस, कि जैसे ही यूजर यूजेस द टूल, उसको टूल का जैसे ही रिजल्ट आए, he'll get a mail कि कौन से important errors आए हैं, कौन से errors he should check and he should correct, or he cannot proceed with, and what is the method how he can correct. So ऐसे handbook बना कर देना. So that was my part. So my मेरे पार्ट में आई स्टडीड एवरीथिंग, बिकॉज मैं टूल्स यूज करते हैं, तो एवरी प्रोसेस के लिए अलग टूल होता है, सो वी कैन ऑलवेज एक्सटेंड द थिंग्स। सो मैंने साइन ऑफ, सिंथेसिस, पीएनआर टूल्स, इन सारे टूल्स पे वर्क किया था। दैट वाज माय, So you have used all these tools, I think, first time during your या internship. एग्जैक्टली। तो आपने वहीं पे लर्न किया एंड देन यू हैव अप्लाइड इन योर प्रोजेक्ट। या एक्चुअली ऐसा था कि ये सब्जेक्ट मुझे पढ़ाया ही नहीं गया था। मैं कह रही हूँ ये फाइनल ईयर में आया था, पूरा चिप से प्रोसेसिंग जो होता है, ईडीए टूल्स, एचडीएल, वेरीलॉग, ये सब फाइनल ईयर में था। और उस टाइम पे मुझे आइडिया भी नहीं था ये प्रोसेस क्या होता है, व्हाट इज पीएनआर, व्हाट इज साइन ऑफ, व्हाट इज एसटीए। तो फर्स्ट मीट विथ माय टीम एंड दे गेव मी सम वर्ड्स एंड आई वाज लाइक व्हाट आर दीज वर्ड्स, मैंने तो कभी सुने ही नहीं, क्या मैं सही इंडस्ट्री में आई हूँ, कहीं गलत जगह तो नहीं पहुंच गई। एंड देन धीरे धीरे दे ऑल हेल्प्ड अ लॉट। मैंने उन्हें बताया कि मेरे कोर्स में तो ये सब कुछ नहीं था, तो दे ऑल हेल्प्ड अ लॉट, और उन्होंने मुझे रिसोर्सेज दिए कि यू स्टडी दिस, यू स्टडी दैट। एंड इवन देयर वर सम पीपल फ्रॉम माय टीम जो मेरे मेंटर नहीं थे, सो एवरीवन गेट अ साइन, एक मेंटर मिलता है उनको फॉर ऑल दीज डाउट्स। बट द पीपल वर सो हेल्पफुल कि वो अपना, दे यूज टू डू देयर वर्क, और फिर एक्स्ट्रा टाइम में दे यूज टू टीच मी कि okay, you can do this, this is this, this is this. It was like really helpful and people were really good, and then I studied everything, then I did my project. So Ananya, this internship was online or it was on site? It was on site, actually it was in Bangalore. You interacted with your team members, because online internship में या online job में थोड़ा सा issue होता है। हाँ, If you have exactly, doubts तो एक interaction build नहीं हो पाता है टीम के साथ। failed नहीं हो पाता। तो दैट्स व्हाई आई से कि स्टूडेंट शुड, अगर आपको चांस मिल रहा है कि यू हैव एन ऑन साइट, तो कई बार होता है कंपनी आपको ऑप्शन देती है कि यू वांट अ हाइब्रिड और ऑनलाइन, और यू वांट टू कम टू साइट। जनरली पीपल वर लाइक कि घर पे रहकर आराम से करते हैं, तो आई वुड से गो टू द साइट, क्योंकि वहाँ पे यू गेट अ डिफरेंट एनवायरनमेंट, एंड कॉपरेट और जो स्टूडेंट लाइफ होती है उसमें बहुत ज़्यादा
डिफरेंस होता है जमीन Yeah, आसमान का. basically, this is your learning period. You are a fresher. So Exactly. you should Exactly. give more priority to on-site work. On-site things, yeah, exactly. Students should go there, learn. और फिर उसमें क्या होता है ना, you not only learn your stuff, आप दूसरों से बात करते हो वो क्या कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं, you learn other things also. And I would say कि कोई भी इंसान को लाइफ में लर्निंग स्टॉप नहीं करनी चाहिए. लर्निंग शुड बी एवरी टाइम. ऐसा नहीं कि हमने बीटेक कर लिया अब खत्म पढ़ाई, एमटेक कर लिया खत्म पढ़ाई, पीएचडी हो गई अब तो नहीं पढ़ना. हमेशा आपको पढ़ना होगा, और जब भी आप ओपन टू लर्निंग रहोगे ना, यू कैन सक्सीड इजीली. अगर आप लर्निंग में हेजिटेट करोगे देन इट गेट्स डिफिकल्ट. Yeah, that is why we tell learning is a continuous process. एग्जैक्टली, इट शुड नॉट स्टॉप, शुड ऑलवेज ओपन टू लर्न. ऐसा कभी नहीं हो सकता कि यू लर्न एवरीथिंग कि मुझे अब सब आता, मुझे कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं. सो दैट्स द थिंग. सो ये मेरा इंटर्नशिप एक्सपीरियंस था एंड इट वाज वेरी पॉजिटिव. तो द प्रोजेक्ट वाज दैट, एंड फिर मैंने उसको अपने फाइनल रिज्यूमे में भी डाला था. तो दैट वाज माय इंटर्नशिप. So when did you just get that PPO offer? Okay, so I was selected for an on campus internship. तो मेरा internship जो था सेकेंड से थर्ड ईयर का जो ट्रांजिशन होता है, उस टाइम पे आई गॉट सिलेक्टेड फॉर माई TI इंटर्नशिप. और फिर उसके बाद थर्ड ईयर के एंड में जो थर्ड से फोर्थ ईयर का ट्रांजिशन होता है, उस समर वेकेशन में आई डिड द इंटर्नशिप. फिर उसके 2 महीने के लगभग आई गॉट द PPO ऑफर फ्रॉम द कंपनी. सो बिफोर, जनरली जब आपका कॉलेज का प्लेसमेंट स्टार्ट होता है उसके पहले दे रिलीज द ऑफर, सो दैट आप उस प्लेसमेंट में बैठ के कोई और ऑफर ना ले लो. तो Okay, so जनरली before your placement process, that is college का placement start होने से पहले ही आपको PPO मिल गया था. Okay, एग्जैक्टली. great. So Ananya, how your Google journey has started? Like how you got that opportunity? So before moving ahead in this video, I have an important announcement for all those students who are struggling to enter into VLSI industry. You guys can join one-to-one career guidance and doubt clearing session. This session is specially designed to provide the customized solution. You can ask your each and every doubt. Also, you can share your resume for review and will get a customized roadmap to utilize your time effectively. 100 plus students have already joined and you can see here the feedback. So if you are interested, just DM me on either LinkedIn or Instagram to book your slot. Okay, so my Google journey started after I got an internship offer from Texas Instruments. So उसके बाद what happened was I was looking for some programs so that I can learn the things, because as I told you earlier, I was not so devoted in code at that time. I prepared for both, for IT sector IT also and and for core core also. also. So what I did was I was looking for some resources and some programs so that I can learn. So उस time पे there is a company named Talent Sprint. So it launched a program with Google. Like Google was sponsoring that program. So it was in third year only. So it was for third and second year girls. So the program was like they will select 50 girls from all over India, and they will teach them in a training camp. So it was online classes and all. And then in December, like I got that program started in, I guess, July August, after I got my internship. That program started. So uske baad, when you get selected, you will get a boot camp in December. So that boot camp was in Google Labs, so Google Semiconductor Labs. So that was the boot camp, and after the boot camp there will be a test. So they will teach you for an year, you'll get a lab kind of thing, so you can have a practical knowledge. And then they will take a test, and then they will offer, those who are selected will be getting 6 month internship in Google Semiconductor. So I was selected for that program, but I actually didn't went forward with it, because there were some terms and conditions that was not disclosed before I applied. Like when I got selected, then I got the form, and like when you sign off the letter, ki, okay, I'm accepting the opportunity, there it was mentioned that if I miss any, like there was a criteria that if you miss that number of classes, or if you you scored less marks in the exams they take,
or you are not able to go for a boot camp, or you are not able to do 6 month internship due to some unforeseen circumstances, or due to your college or anything, you have to pay them back. Like Google was sponsoring the program, so the fees was about 1 lakh something, so per month. So that was given by Okay. Google. So if you in anyhow, like if you opt back from the program, you have to Mhm. pay that fees back to them. So it was Oh. like risky, and my financial condition is not good ki I can pay back that much money, or I can take the risk. Like for God's sake, if something happened to me, any accident or something, so at that time I have to pay that money if I am not able to attend the classes. So that's why I rejected the opportunity that time. Like I didn't sign up for it, but it is a very good opportunity. One of my friend did it, and she's like, she did the internship and all. So this program is for EC students only or for other branches too? This program is specifically for EC students and related branches like EIE, instrumentation, and electrical, those branches. So ये था, and there are many programs. This is not the only program. Second year internship के लिए there are many programs. So people can do internship in second year, and then उसी program से they'll get the internship for third year, and then they can get converted into a PPO offer. So there are many programs. So that was the first part of my Google journey. After that, I did my 2 months internship in TI, and my TI PPO result were not out. So I was in ambiguity, like what if I didn't got selected, what will I do? Yes. And preparing for placements is very different from preparing for internships. So like when I got selected 1 year back, I got selected for internship, and then for a year I only focused on my skills. So the theoretical knowledge is important, CGPA is the key. So ये सब चीजें जो थी, so I was not prepared for that. So I was like कि एक साल पहले I got selected 1 year back, and now I have to do everything, so very tense. So I applied for Google, and Google embedded software roles In also. off-campus manner. Yeah, Mm-hmm. in Compass, off campus. So that time I got a notification like you can always subscribe to the company's career page, so they will get you notified when they get any opportunity. So I got a notification, so I was like, let's apply for this, let's see if I got the PPO offer, then we will see which one we have to select. Just let's apply. So I applied like very lightly ki, okay, let's apply. And my resume got shortlisted, and I got my PPO offer, and I got the call for interview in Google. So everything was so simultaneous. Like I applied, then I got a call from Google for interview in the 10th month of the year, like in October. So Okay, in 10th month, like when you have applied and when you got the interview call, नहीं, उसके like I बीच में कितना ड्यूरेशन था? उसके बीच में 3 महीने का आई गेस ड्यूरेशन तो Okay. होगा ही. Mm-hmm. Okay, so it's like Google में what I feel is कि they take the applications, but when they know कि it's a right time to hire that person, they'll call you. So अगर वो reject नहीं हुआ है, your application is not rejected, so you can get call anytime. So मेरा इंटरव्यू कॉल आया, एंड देन जब मुझे फर्स्ट आया उसके 1 महीने के बाद आई गॉट द स्लॉट फॉर इंटरव्यू. So फिर I gave the interview, and then उस टाइम तक I got my PPO results back. So I was little bit confused कि should I go to Google or should I go to TI? But I was like, okay, let's give the interview. If we get selected, then we'll see. What if we don't get selected? Then why to have the headache? And I gave the interview in a casual way, and I think that was the most important part, when I like most helpful part to crack the interview, because I was not tensed ki what if I don't get selected, because I was also having an offer. So I was like, Mm-hmm. if I don't get selected, it's okay. Like, so You I was not at all already have an tense. offer in your hand, Yeah. right? So I think that gave me the confidence. So confidence is the key in any interview, I think. So that happened, and then I got selected there. So I was keen ki okay, embedded systems is something that I love. Like apart from digital, embedded system is that something that I love and I excel at. So I was very sure ki I'll take the Google offer. But then when I got the offer, it was embedded software engineer under the software engineer role. So it was mostly software engineering. So it was like it's very easy to switch to software engineer from embedded software engineer role, but it's difficult to switch to hardware
domains like digital or embedded hardware from embedded software role. So ये थोड़ा सा confusing था. So that's why then I was like कि I love the VLSI thing, so I'll just go in hardware. So then I rejected that opportunity and I accepted the offer from TI. So ये गूगल का फाइनल रिजल्ट आपको कब पता चला दैट यू आर सिलेक्टेड नाउ? Nearly in December something. ओके, लाइक इन अक्टूबर इंटरव्यू हुआ एंड देन इन दिसंबर यू गॉट द रिजल्ट. In October I got call for the interview, and then November beginning में ऐसे interview हुआ, and then after a दिसंबर month of में. I got the result. सो अनन्या, हाउ अबाउट योर गूगल इंटरव्यू? किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे उन्होंने इंटरव्यू में? Okay, so Google's interview was interesting. They didn't ask a single question from VLSI or electronics. They asked data structures. And because of, I told you na, everywhere you have to code. अब कुछ हाथ से नहीं होता है. Everything is automated. So I asked interviewer that why you are asking me these questions. I am from core background. I have industry experience. So you can ask me anything from the industry. So he was like, ki, see, when you work here, you work with new technology. So they were not at all interested what I know. They were interested how I think. So data structures is best way to judge anyone ki how they think. You get a problem, how you approach to the problem, and what are your skills in writing codes, because you have to write codes. Either it's C, either it's Verilog, either it's Java. You have to write a language. So he specifically like explained it to me that that's why everyone at this point don't know everything. So that's why they take some basic things. So they take data structure. So data structure is the most basic thing. So that's why he said कि we'll ask data structures to you. So data structure पूछा था 3 राउंड में. Plain basic array and strings, उसका जो basic questions होता है वो पूछा था. So दैट वाज समथिंग डिफरेंट. सो अगर कोई कोर का स्टूडेंट एम्बेडेड सॉफ्टवेयर रोल के लिए कहीं अप्लाई कर रहा है, देन ही शुड नो द डेटा स्ट्रक्चर्स. और फिर ही शुड ऑल्सो आस्क टू HR इन प्रायर कि क्या पूछा जाएगा इंटरव्यू. सो HR विल रिस्पॉन्ड. सो मुझको भी लिस्ट दिया गया था, बट उसमें कुछ कुछ कोर के कॉन्सेप्ट्स भी लिखे हुए थे. सो आई प्रिपेयर्ड फॉर दैट कॉन्सेप्ट्स एंड आई वाज लाइक डेटा स्ट्रक्चर कौन पूछेगा कोर में, बट दैट वाज वेरी डिफरेंट. सो आई थिंक पीपल शुड प्रिपेयर इट फॉर that. So if they are applying for Google, so they should know data So structures. even it is for embedded system role, then also you should prepare data structures and your either C, C++ or Java, whatever language you are learning. Yeah, I would say C, C++, Java एक language you should learn. मतलब it's like अगर you are engineering student, you should learn it, because हर जगह पे you will get कहीं ना कहीं से वो आ ही जाता है, coding आ ही जाती है. So this is something आप कभी उससे भाग नहीं सकते. So that was the Google interview, and then there were HR questions. So Google में HR questions were a bit tricky. TI में they didn't ask much HR question, but in Google properly they gave me scenarios and how you'll respond and everything. Okay, So so could you please share some of the questions? okay, so one question was that you are in a team, and there is a person who took all the credit for your team and everybody worked hard. So what you will do? So this was the question in my second round, I guess. And So what was your answer? See, I didn't prepared anything, so I answered what I would do. So I told him that, see, when we are a team, so we don't show ourselves as कि हमारी टीम में inside कुछ लड़ाई चल रही है, we are in a fight or something. So when we are in presentation, I'll not say anything. I'll just let him keep, okay, you take the credit. But after that, I'll go to him personally and I'll ask him ki, why you are doing this. You should not do this, because it's important not for me also. Okay, I worked. If you are taking my credit, maybe I can, okay, you can take my credit. But everybody else also worked. Na? So as a team, I should think about everybody else. So it's Yes. not about me. अगर सिर्फ मेरे बारे में होता, so I would have talked to him personally or something. But if it is about everyone, this is an issue. Hmm. So that's how I answered the question. So I would say अगर HR question कोई इंसान someone is doing, just remember, whenever you are in a team, you should always go by the team rules कि हमारी team should be the best. Internal conflicts, क्योंकि HR question are mostly circled around teams only, या किसी ने काम किया नहीं, या you are the team leader, ऐसे ही आएगा.
सो जब भी ऐसा कुछ हो तो ऑलवेज रिमेंबर कि टीम को व्हाट दे वांट इज कि द कंपनी शुड प्रॉस्पर, सो आपका Hmm. प्रोजेक्ट शुड नॉट गेट डिलेड। सो अगर कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि व्हाट इफ अ पर्सन इज गिवन सम टास्क एंड ही इज नॉट डूइंग इट, व्हाट विल यू डू? Will you do his task? Will you assign it someone else? What will you do? So at that time आपको आंसर करना इन अ वे कि हाउ दैट थिंग विल बेनिफिट द कंपनी, कंपनी की प्रोग्रेस को हैम्पर ना करते हुए हाउ यू Yes, विल हैंडल द सिचुएशन। actually, because ultimately you have to focus on company's growth. या इंटरनल एग्जैक्टली, पॉलिटिक्स तो हमेशा चलती रहेगी, कंपनी की एग्जैक्टली। ग्रोथ नहीं रुकनी चाहिए। दैट इज हाँ, व्हाट एचआर वांट, कि वो आपसे ये सुनना चाहते हैं। सुनना चाहते हैं तो यू कैन हम्म। आंसर इन इट दैट वे, सो दैट्स द थिंग। सो एचआर क्वेश्चंस थे गूगल में, अच्छे पूछे गए थे, और प्रोजेक्ट के बारे में दे डिस्कस्ड कि व्हाट इज योर प्रोजेक्ट एंड हाउ यू डिड इट। और अगर आपका कोई ग्रुप प्रोजेक्ट होता है तो दे विल आस्क अबाउट कि हाउ your group was contributing and what are your team leader skills. So always try to take initiative and all those things and just say it like that, and don't get tensed. Like Google mein aisa tha, the interviewers were so cool and chill, and they were like, they made me comfortable for first 5 minutes and then they asked the questions. So always remember, the har jagah hota hai ki interviewer is not there to reject you, he is there to accept you. तो हम्म। ये चीज अगर आप माइंड में लेकर चलोगे कि ओके ही इज नॉट देयर टू रिजेक्ट मी, वो तुम्हारे नेगेटिव्स पे नहीं देखेगा, ही इज देयर टू हेल्प यू। अगर मुझे क्वेश्चन टीआई में भी मुझे क्वेश्चन अगर नहीं बन रहा था, आई वाज स्टक इन द पजल, तो ही वाज कीप giving me hints and he's like okay you can do it, can you think in some different directions. So ऐसे वो hints देते हैं, they are there कि आप अच्छा करो, वो लेना चाहते हैं, या that's why they एक्चुअली। selected, that's the whole motive ना, they are there for hiring not for rejecting. सो ये हम्म। चीज अगर आप दिमाग में लेकर बैठोगे तो आई गेस योर कॉन्फिडेंस विल बी। Yeah, anyway, you have to show the enthusiasm that या you, even if you don't know, but you are trying to solve that question. exactly, exactly, they are there to select their colleagues Hmm. basically, in very Yes. layman term they are there to select their colleagues, so they should get a vibe from you कि, okay you can do this, and when you'll work with them you will do good. So they are there for that, they are not there for selecting a genius or something. So Yeah, that's the true. basic part of the interview. So, Ananya, tell me one thing. You have applied in both the companies and you were selected in both of the companies. So, जब Google में आपने apply किया, then what all skills you have mentioned in your resume? And the same thing for TI also. Okay, so the roles were different for both. So I would say कि for TI, did for digital engineering. So my skills were basically microprocessors, microcontrollers, the logic gate, and the languages, Verilog, VHDL, whatever I know. तो ये सब चीज़ें I mentioned more. और जब मैंने गूगल व्हेन आई अप्लाइड फॉर गूगल, सो आई मेंशन इट वाज एम्बेडेड सॉफ्टवेयर, सो उस हिसाब से आई मेंशन द पेरिफेरल्स आई वर्कड ऑन, and whatever the knowledge of embedded software I have, and so machine languages and everything, that all things are important. So you have to check the requirements, जब भी आप when you apply, कंपनी की कुछ requirements होती हैं जिस पे you have to work, so आपको वो देखना होता है, and you have to mention those skills, and it's not like mentioning, you have to learn those skills. So that's the thing, that's the key, अगर आपको अपना रिज्यूमे कहीं शॉर्टलिस्ट कराना है, so you have to match your skills with the company's skills what they require. So basically, you have tailored your resume before Yeah, forwarding exactly, it. जो भी exactly. job description में mention था, you have mentioned all those keywords in your resume. हाँ, and I've learned them also. So it's not like some people क्या करते हैं, they bluff about these things. I would not recommend that because when you bluff about anything, Hmm. ultimately interview में आपको दिक्कत होगी, and for God's sake अगर आप कैसे भी select हो गए, it would be very difficult to work there, Yeah, to sustain there. sustain there. Yeah, so then you have to work day and night. इसीलिए लोगों का work life balance बिगड़ जाता है. Hmm. सो आई वुड से कि डोंट ब्लफ अबाउट योर स्किल्स, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है टू गेट बेसिक आइडिया ऑफ एनी स्किल, so just do that. So that's what I did for resume, and some techniques are also there I would like to share for resume building. So what happens is, for a good resume I would say, always I would say just look at your resume, वहाँ पे कोई इंटेंडेशन एरर नहीं होना चाहिए, कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं होना चाहिए, your resume should look monotonous.
जैसे अगर आपने फर्स्ट लाइन कुछ मेंशन की है, देन अगर आपने उसके बारे में जो डिस्क्रिप्शन है वो एक स्पेस के बाद लिखना शुरू किया, तो हर जगह वो चीज़ फॉलो होनी चाहिए। सो जो ये डिजाइनिंग टिप्स होती है ना, इससे नेगेटिव स्कोर्स होते हैं। अगर आपका कहीं पे थोड़ा सा पैराग्राफ लेफ्ट शिफ्टेड है, तो उसको लगता है कि ओके थोड़ा सा शिफ्ट ही तो है, कंटेंट तो वही है, वहाँ पे आपके पॉइंट्स कट जाते हैं जब वो रिज्यूमे स्क्रीन करता है। तो वो चीज़ें होनी चाहिए। एंड क्या होता है कि व्हेन यू गो फॉर ऑफ कैंपस इंटर्नशिप्स एंड ऑल, आपका रिज्यूमे कई बार मैनेजर भी लुक करता है, जो भी आपको सिलेक्ट कर रहा है, सिलेक्शन मैनेजर वगैरह। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू हाईलाइट योर स्किल्स, जो आपके इम्पोर्टेंट स्किल्स हैं, या आपको लगता है कि ये स्किल्स इम्पोर्टेंट थी। आपने जैसे मैंने देखा कि मान लीजिए समवन शुड गुड इन बी गुड इन वेरीलॉग टू वर्क इन द प्रोजेक्ट, जो भी हमने रिक्वायरमेंट्स में देखा था। तो वेरीलॉग इज अ इम्पोर्टेंट स्किल। तो अगर कोई आपका रिज्यूमे एक फ्लैश में देख रहा है, तो उसको वेरीलॉग दिखना चाहिए, देन ओनली ही विल सिलेक्ट, राइट? तो Yes. अगर आप बहुत ज्यादा पैराग्राफ्स लिख दोगे उसमें कि वेरी गुड इन, वेरी प्रोफिशिएंट इन वेरी हाई लैंग्वेजेस लाइक वेरीलॉग, तो वो उतना नहीं पड़ेगा। सो यू हैव टू हाईलाइट दैट वेरीलॉग पार्ट। या फिर आपको एक और ट्रिक होती है, ये आप हाईलाइट करो अपने इंपॉर्टेंट पार्ट्स को, बड़े वर्ड्स में लिखो, या फिर वेरीलॉग, फिर उसके नीचे उसका डिस्क्रिप्शन अगर आपको कुछ लिखना है तो लिखो। और एक चीज होती है कि जब आप प्रोजेक्ट्स मेंशन कर रहे होते हैं, उसमें जो जो स्किल्स आपने यूज की हैं उनको हाईलाइट करके रखो। गिटहब की लिंक डाल दो अगर गिटहब पे प्रोजेक्ट है तो। और आई वुड से कि जब आप लिखते हो, अगर आप ऐसे बड़ी सी लाइन लिख रहे हो अपने रिज्यूमे में, जैसे कई बार होता है यू हैव टू फॉलो द इंस्टीट्यूट का जो फॉर्मेट होता है फॉर ऑन कैंपस। सो उसमें क्या होता है, यू कैन नॉट चेंज द फॉर्मेट। सो उसमें आपको अगर इसे लंबा सा लाइन लिखना है, सो लेफ्ट साइड पे पेज के यू शुड इम्पोर्टेंट मेंशन द इम्पोर्टेंट स्किल्स। राइट साइड पे आप कुछ भी लिखो। जैसे अगर आपने मान लो प्रोजेक्ट में किया हुआ है कि यू हैव यूज्ड लिनक्स एंड यूनिक्स, ठीक है, और वो आपका एसटीए पे प्रोजेक्ट, तो आप एक तो यू कैन राइट कि आई हैव डिड अ वेरी गुड प्रोजेक्ट नेम्ड दिस इन एसटीए यूजिंग लिनक्स एंड दिस। और यू कैन राइट दूसरा पे क्या है कि यूजिंग लिनक्स डिड अ प्रोजेक्ट ऑन एसटीए दैट वाज दिस। सो उसमें क्या है, लेफ्ट साइड पे आपका मेन कंटेंट आ गया। जब वो पढ़ता है ना, तो आदमी शुरू के 3-4 वर्ड्स कंसंट्रेशन से पढ़ता है, फिर उड़ा देता है कि अच्छा ये है, ये है, ये है। तो लेफ्ट साइड ऑफ द पेज शुड हैव द इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स। ये एक बहुत बहुत लाइफ चेंजिंग ट्रिक है, क्योंकि जब भी कोई भी आप बुक भी पढ़ोगे, तो आप पहला वर्ड अच्छे से पढ़ते हो, फिर आपका हो जाता है हाँ ये है, कंसंट्रेशन मेंटेन नहीं हो पाता है। नहीं होता। दैट इज व्हाई इट इज सजेस्टेड कि आप बुलेट पॉइंट्स का यूज करो मोस्टली अपने हाँ, रिज्यूमे में। एग्जैक्टली। और आप अपने वर्ड्स अपने सेंटेंस में ऐसे टेलर करो कि आपके लेफ्ट साइड पे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हो। तो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल। उसके अलावा यू कैन मेंशन योर ग्रेड्स। तो क्या होता है, आप कोर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो जो रिलेवेंट सब्जेक्ट्स में आपके ग्रेड्स होते हैं, यू कैन मेंशन दैट। तो मैंने मेंशन किया था, जिस भी कंपनी के लिए अप्लाई किया उसमें जो सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट थे, उसमें मेरे क्या ग्रेड्स थे, आई हैव मेंशन दैट। तो एक वो भी आ जाता है, तो उसमें एक प्लस पॉइंट आता है। इसके अलावा आप जो अपना एक्सपीरियंस देते हो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, उसको अच्छे से टेलर करो, बिकॉज वो भी इम्पोर्टेंट होता है पर्सनालिटी चेक के लिए। तो अगर आपके पास कोई एक्टिविटी, तो इसलिए मैं आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि डू समथिंग इन योर कॉलेज लाइफ, डोंट जस्ट सिट एंड रीड, join any club, do any, become an organizer of any event, organize any event, do anything, but do some things। सो वो इम्पॉर्टेंट होता है। सो यू हैव टू टेलर इन इट इन सच अ वे। और अचीवमेंट्स में भी सेम चीज़ कि बहुत मेनी पीपल डोंट हैव इनफ अचीवमेंट्स। उनको लगता है अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं है लाइफ में, या अभी तक कॉलेज लाइफ में इतना कुछ हुआ नहीं है। आप छोटी छोटी चीज़ें डालो। आप किसी छोटे से प्रोग्राम में सिलेक्ट हुए थे, आप वो मेंशन कर दो। अचीवमेंट्स डजंट मीन कि आप किसी कंपटीशन में फर्स्ट रैंक लाओ, आप वो मेंशन करो। जस्ट मेंशन इट। आपको आना चाहिए कि हाउ यू कैन प्रेजेंट योर सेल्फ टू द फुलेस्ट। रिज्यूमे इज बेसिकली क्या होता है कि आप अपना एक पैम्पलेट उनको दे रहे हो कि दिस इज व्हाट यू विल गेट इफ यू विल सेलेक्ट दैट पर्सन, काइंड ऑफ योर मेन्यू। तो आपके पास जो छोटी मोटी चीज है, लेट्स गिव इट अ शॉट, दे दो। अचीवमेंट खाली रखने से बेहतर है ना कि आप कुछ छोटा मोटा ही दे दो। सो ऐसे आपको खुद को, मतलब ऐसे, मतलब लेमन टर्म्स में बोलूँ तो आपको खुद को बेचना आना चाहिए सामने वाले यस। को। एग्जैक्टली। तो वो आपके रिज्यूमे में हाईलाइट होना चाहिए। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर आप एक अच्छा रिज्यूमे बनाना चाहते हो। और मैं प्रेफर करती हूँ बोरिंग रिज्यूमे ना बना के थोड़ा कलर वलर ऐड करूँ। तो मेरे रिज्यूमे में से ब्लू कलर से हेडिंग्स होती थी और ब्लैक कलर से लिखा होता था, बट यू कैन यूज सिंगल कलर ऑल्सो। तो मैं थोड़ा ऐसे लाइक व्हाट आई फील इज कि रिज्यूमे मेरा थोड़ा सुंदर दिखना
चाहिए. तो दैट्स द थिंग. सो ये एक्चुअली कई लोगों का ये मानना होता है कि टू मेक एटीएस कंप्लायंट रिज्यूमे उसमें बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट मत करो. डोंट ऐड एनी फिगर्स और फोटो. जस्ट हाँ. राइट द टेक्स्ट. डोंट ऐड एनी टेबल. एंड आपका जो फॉन्ट साइज है वो फिक्स्ड होना चाहिए. फॉन्ट स्टाइल शुड बी वेरी सिंपल. सो व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव टू मेक एन एटीएस कंप्लायंट रिज्यूमे? सो व्हाट आई वुड से इज, मैं ये नहीं कह रही, आई एम नॉट सेइंग कि ऐड फिगर्स और एवरीथिंग. अगर इफ यू आर राइटिंग फ्रॉम ब्लैक, एवरीथिंग इन योर रिज्यूमे इज ब्लैक, सो आफ्टर एटीएस जब वो आपके इंटरव्यूअर के पास जाएगा, तो it would be a little difficult for him to look at it. या तो फिर you make the headings in bold, but you are also highlighting your important points. So these are the things you should do. But finally you have to keep it formal. और जो उसका आपका चीज़ है, तो you don't have to play with the text style और fonts. You don't have to play with that. वो आप simple रखो. You play with the content what you are writing. And ATS stands for Application Tracking System, which is basically a bot, and it is used by multiple companies specifically to shortlist the resumes in case of mass hiring. This bot will shortlist your resume based on the mentioned keywords. Mean to say, whatever keywords are there in the job description, if you have mentioned all those keywords in your resume, then this bot will get a signal that this candidate could be a best fit for the position, and it will shortlist your resume. you can do this. Or grades you have to mention, that would be a plus point, I would say. So अगर उसके लिए you make a table, तो वो एक छोटी सी टेबल है that you can do. और नहीं तो आप बुलेट पॉइंट्स में लिख सकते हो सब्जेक्ट दिस ए प्लस ग्रेड, या जो भी आपका ग्रेड है, तो वैसे आप लिख सकते हो. तो आई कैन से दैट यू कैन डू. लेकिन हाँ, फाइनली हर कंपनी का अलग अलग तरीका होता है रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट का. सो इफ़ यू नो एनी वन, बेसिकली फिर कनेक्शंस आता है. इफ़ यू नो एनी वन जिसने पहले क्रैक किया है, यू कैन आस्क देम कि इस कंपनी में कैसा रिज्यूमे आपने दिया था, किस टाइप का शॉर्टलिस्ट हुआ है. बिकॉज हर कंपनी का अलग होता है. कुछ कंपनीज होती है जो एक एक पढ़ लेती हैं रिज्यूमे. ऑफ कैंपस में कई बार होता है, रेफरेंस आपने लिया है तो आपका रिज्यूमे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो फिर पूरा रिज्यूमे से ही देखते हैं आपको. तो वहाँ पर दे विल नॉट चेक योर एटीएस स्कोर मोस्टली. दे विल सी कि व्हाट इज द मेन कंटेंट इन इट. जब आपका मास में सिलेक्शन होना होता है, देन दे यूज द रोबोटिक सिस्टम्स इन एमएल Yes, एंड एआई, correct. राइट. तो उस हिसाब से एवरी टाइम यू हैव टू टेलर. तो आप एक रिज्यूमे हर जगह यूज नहीं कर सकते. यू हैव टू यूज डिफरेंट थिंग्स. Also, Ananya, how many projects you have mentioned in your resume? Because students का ये एक डाउट होता है कि कितने projects हमको mention करने चाहिए, specifically being a fresher. हाँ, so I would say if you are a fresher, just mention 2 projects. That's enough. But project should be good. Like it should not be like normal. Agar when you are applying in second year, you can make a normal project, and you can make a common project. Some projects are really common, like you studied that and you just took the example and you made Hmm. something. And some projects are really complex. You have used a lot of technologies and you have built that. Yeah, just Arduino में a lot of sensors and you did that. So Hmm. वो projects होते हैं. So second year में they won't be much interested in your project because they know you are still learning. But if you are going for third year yeah placements, then they will look onto your projects and they will expect a good project from you. So that time you have to make a good project. Good in the sense, whatever you are doing, you should not it should not be basic, first thing. And second thing, it should be helpful to the society. I think that matters, because आप ऐसे कुछ भी प्रोजेक्ट बना के नहीं डाल सकते. इफ योर प्रोजेक्ट हैज अ गुड पर्पस, उसके पॉइंट्स एक्स्ट्रा होते हैं. तो आई थिंक दैट मैटर्स. सो ये प्रोजेक्ट्स आपको ऐसे डालने चाहिए, बट डोंट पुट टू मैनी प्रोजेक्ट्स, बिकॉज ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हो जाता है, देन मे बी आई डोंट थिंक सो कि इट्स गुड, क्योंकि आपका रिज्यूमे भी बहुत भरा भर हो जाता है. आपको Yeah, वो बहुत सारी चीज़ें स्पेस डाल. बहुत ऑक्यूपाई कर लेता है अगर आप ज्यादा एग्जैक्टली. प्रोजेक्ट्स डाल रहे होते हैं. और फिर सो 2 से ज़्यादा दे कैन नॉट डिस्कस इन इंटरव्यू. mm-hmm. टाइम भी नहीं होता है. So apart from projects, what other things should be there in your in their resume? ओके, सो प्रोजेक्ट्स के अलावा आई वुड से कि अगर आपका प्रीवियस कुछ एक्सपीरियंस है, तो आप वो डाल सकते हो. लाइक एक होता है आपने प्रोजेक्ट किया, अगर जैसे मैंने इंटर्न किया हुआ है, तो एक मेरा इंटर्न का प्रोजेक्ट होगा, एक मेरा पर्सनल प्रोजेक्ट होगा. तो मैं एक्सपीरियंस में इंटर्न का प्रोजेक्ट डालूंगी. तो अगर आपने प्रीवियस कोई छोटी सी भी इंटर्नशिप की है, या किसी प्रोफेसर के अंडर कुछ काम किया हुआ है, कई लोग होते हैं वर्क इन रिसर्च पेपर पे काम किया है, सो यू कैन एक्सपीरियंस में ऐड कर सकते हो. तो एक्सपीरियंस का
एक अच्छा पॉइंट मिलता है कि पहले से उनको पता होता है कि ओके यू हैव एक्सपोजर टू द इंडस्ट्री, तो दैट Other than that, students should mention the subjects, I think, whatever they have studied, then the what all tools they are using, what all exactly. languages they are learning. So I think all these things should be there in the They should resume. be there, exactly. And even if you are studying a microprocessor, you if you have studied four microprocessors, like four types of microprocessor, you can just say ki microprocessors this, like 8051 or whatever you have studied, ARM processor, these like that. Matlab, you have to tailor your resume yourself. You know what you did, so you have to get maximum out of it. तो जो जो पढ़ा है यू हैव टू टेलर इन सच अ वे कि वो ज़्यादा भी ना हो कि बहुत ज़्यादा भरा हो रिज्यूमे, Hmm. but everything should be there. So that is a very crucial point. Or one more thing, people just use chat gpt for resume. I Hmm. would say कि use chat gpt to curate the line that you write, like you write the line yourself and then ask chat gpt to just modify your line so that it could be better in presentation. But don't straight away use chat gpt to make resumes, because वो AI score पता चल जाता है रिज्यूमे का, एंड देन दे विल कट इट आउट कि ओके दिस इज, तो Okay, वो so students idea ले सकते हैं chat GPT से, but finally they should write by their own. हाँ, दे कैन, लाइक आप कोई राइट आपने कुछ लिखा हुआ है, आपको पता है आपने क्या किया प्रोजेक्ट में, अब उसको अच्छी लैंग्वेज में आप चैट जीपीटी से लिखवा सकते हो। बट Hmm. आप ऐसा नहीं कि चैट जीपीटी को बता दो हमने ये प्रोजेक्ट किया है तुम लिख दो। यू राइट योर लाइन्स, फिर उससे मॉडिफाई करा लो, मिस्टेक सही करवा लो, ग्रामर वामर Hmm. का देख लो। Hmm. बट आई वुड से कि लिखो खुद से, क्योंकि एआई स्कोर इज समथिंग जो बहुत इजीली चेक हो जाता है और फिर वो पता चल जाता है, तो एक फिर बहुत ही गलत impression हाँ, create करता है, एग्जैक्टली। yeah. सो ये नहीं होना चाहिए। सो फॉर ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स आई वुड से कि जो स्टूडेंट्स हैं दे शुड बी एक्टिव इनफ इन ऑल द साइट्स, जैसे naukri.com, इंटर्नशाला एंड द करियर पेज ऑफ द कंपनी। ये सब दे शुड बी एक्टिव और दे शुड चेक, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटीज क्या होता है कई बार आती हैं बट नोटिस नहीं करते हैं, छूट जाते हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लिंक्डइन पे यू कैन मेक योर प्रोफाइल और उसमें आता है कि सर्च फॉर वर्क, सो उसमें दे विल गिव द नोटिफिकेशन अगर किसी कंपनी की कोई ओपनिंग है तो। ऑल्सो लिंक्डइन पे आप कंपनीज को फॉलो कर सकते हैं, देन यूल गेट ओके इस कंपनी में ये ओपनिंग है। एंड यू शुड ऑलवेज चेक कि किस कंपनी में कब ओपनिंग आती है। और बहुत सारे सोर्स हैं, रेडिट पे, कोरा पे, यू कैन ऑलवेज स्टडी कि अच्छा ये कंपनी की अभी ओपनिंग आती है, उसमें क्वेश्चन होते हैं। So you have to do a lot of research for off campus job opportunities. Also, again I would say कि if you have good seniors they will tell you कि इस time पे ये companies आती है, experience. So that's all the things Actually, that you many students have this complaint that they are applying on almost all the platforms, but still they are not getting any opportunities. Their resume is not getting shortlisted. exactly. Yeah, I get it. Like you have to be patient because many people, हाँ, सबको एक बार में नहीं मिल जाता। यू हैव टू बी पेशेंट एंड ट्रस्ट मी, एट लास्ट यू विल गेट। आप डिमोटिवेट मत हो, यू कीप अप्लाइंग टू कंपनीज एंड आफ्टर यू अप्लाइड 100 टाइम्स यू विल गेट अ शॉर्ट लिस्ट। ऑफ कैंपस में ऐसा ही होता है। एंड इफ यू आर नॉट फ्रॉम वन कॉलेज एंड छोटे कॉलेजेस से हो, देन इट्स मोर डिफिकल्ट। एंड दिस इज हार्श ट्रुथ, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। Yes. आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि नहीं वो अच्छे कॉलेज में तो क्या हुआ हमारे पास स्किल्स हैं। इट्स अ हार्श ट्रुथ। सी यू हैव टू डू हार्ड वर्क। जो जेई क्लियर करके हार्ड वर्क करके पहुंचा है वहां पर, Hmm. वो इसीलिए पहुंचा है ना कि उस टाइम पे उसने वो हार्ड वर्क कर लिया ताकि आगे ना करना पड़े। अगर आप Hmm. उस टाइम पे नहीं कर पाए, किसी रीजन से नहीं हो पाया, सो अब आपकी बारी है हार्ड वर्क करने। सो यू हैव टू बी Yes. पेशेंट। और व्हाट यू कैन डू इज यू कैन टेक रेफरल्स ऑल्सो। अगर आप किसी को जानते हो इंडस्ट्री में कोई एक काम कर रहा है, तो यू कैन आस्क देम फॉर रेफरल्स, तो उससे आपके शॉर्ट लिस्टिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो एक आप वो काम कर सकते हो। और फाइनली जस्ट डोंट गेट डीमोटिवेटेड। और गेट से भी यू गेट पीएसयूज में एडमिशन, वो सिलेक्शन। सो Hmm. इवन इफ यू आर नॉट गेटिंग शॉर्टलिस्टेड एनीवेयर, गेट इज समथिंग दैट इज ऑन योर ओन कैपेबिलिटी कि आपको पेपर देने तो मिल ही जाएगा एटलीस्ट। सो Hmm. अगर आप उसमें अच्छी रैंक लाते हो तो यू कैन गेट सिलेक्टेड। सो अपॉर्चुनिटीज कभी खत्म नहीं होती हैं, यू कैन ऑलवेज एक्सप्लोर and explore, but you have to be patient and you have to wait for your time. Yeah, so many students have this doubt कि LinkedIn में अगर वो रेफरल के लिए ट्राई कर रहे हैं, basically they don't have any friends or any seniors in companies, but they still want for referrals.
तो कैसे लिंक्डइन में किसी अननोन पर्सन को अप्रोच करें हम्म। टू आस्क देम फॉर रेफरेंस? ओके, सो इसमें आई वुड से सक्सेस रेट बहुत कम होता है, तो फ्रस्ट्रेट मत होना। बट वॉट यू हैव टू डू इज यू हैव टू फाइंड अ कनेक्शन। आप किसी रैंडम इंसान को मैसेज करोगे कि मुझे रेफरल दे दो, तो दे वोंट डू। सो यू कैन डू इज कि आप अपने कॉलेज के पेज पे जाके देखो कि आपके कॉलेज से कोई ना कोई तो किसी ना किसी कंपनी में निकला होगा। उसके कनेक्शंस कौन से हैं, तो जो आपसे थोड़े कनेक्टेड होता है कि व्हेन यू अप्रोच देम यू कैन टेल कि ओके, आई एम फ्रॉम दिस कॉलेज, यू वर आल्सो from this college, so I want your help, so can you give me a referral, या can you connect me to your friend or someone who is working in that company so that I can have the referral. So ऐसे करके you can approach and just I would say don't ऐसे भी किसी को भी मत DM कर दो। जस्ट फाइंड अ कॉमन कनेक्शन, चाहे आपके सिटी से हो चाहे कहीं से हो। जस्ट फाइंड थोड़ा सा भी कनेक्शन है, देन यू कैन DM और आपको मिल जाएगा। ऑनेस्टली हर कॉलेज से कोई ना कोई तो उस कंपनी में गया होगा या उस होता सेक्टर में ही गया है। होगा। यस। हाँ, एग्जैक्टली उस सेक्टर में गया होगा। अगर मुझे TI के लिए रेफरल चाहिए, कोई एनवीडिया में है, आई आस्क हिम, फिर वो बताएगा ना कि मेरे दोस्त हैं TI में, अगर तुमको चाहिए तो फिर वहां से आप कनेक्ट कर सकते हो कि आपको इसने दिया था, तो फिर इट उससे चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको रेफर। बट आई जॉइंड TI बिकॉज see, in Google, I was joining as embedded software engineer, and TI, I was joining as digital engineer. Now, when I talk to people, what I found is कि digital engineer से embedded software engineer switch करना is easy, and embedded software engineer से core में जाना is very difficult, like digital इंजीनियरिंग में जाना। बिकॉज सी व्हाट हैपेंस इज एम्बेडेड में क्या होता है, एम्बेडेड इज इन मिडिल, डिजिटल और आपके सॉफ्टवेयर के बीच में मिडिल में यस। आता है। तो अगर आप वो चीज पे कोड कर रहे हो, कोई ब्लॉक्स है आपके, उसका एम्बेडेड में बेसिकली क्या होता है, यू हैव डिफरेंट डिफरेंट पेरिफेरल्स एंड एवरीथिंग, एंड यू हैव टू कोड द कनेक्शंस एंड एवरीथिंग, राइट। तो अगर आप उस चीज पे कोड कर रहे हो और आपको पता है उसके अंदर क्या चल रहा है, तो आप एफिशिएंटली कर सकते हो, राइट। तो अगर आप एक डिजिटल इंजीनियर हो, यू नो हाउ द ब्लॉक्स आर वर्किंग, तो आप उसका कोड कर सकते हो, तो यू कैन स्विच दैट वे। बट अगर आपको एक ब्लैक बॉक्स दिया हुआ है, आप उस पर कोड करते आ रहे हो और समवन इज आस्किंग कि आप उस ब्लैक बॉक्स के बारे में पढ़ो, तो इट्स डिफिकल्ट क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है। ट्रू, So ट्रू। hierarchy, if you see the hierarchy, so I was like, if I want to start my career in VLSI, so I want to start from the basics कि पहले वो black box में है क्या। When I'll get used to it, maybe someday I will switch to embedded software or switch to more complex roles in digital or go to R&D, anything. So I want to start from the basic. That's why I rejected the opportunity at Google, because I think finally in long run what matters is how much you know, because if you know good you will get promotions and you'll get promoted. If you don't know and you're just working on a black box, then your software skills will kick in कि okay, you can work how, like एवरी स्किल इज इम्पोर्टेंट वहां पे आ जाएगा। जब मैं एम्बेडेड सॉफ्टवेयर में करना चाहूंगी, सॉफ्टवेयर में वहां से अगर स्विच करना चाहूंगी, तो वो स्किल्स आएगा कि किसी भी ब्लैक बॉक्स को आप कैसे हैंडल कर रहे हो। वो एक अलग स्किल होता है कि आपको पता नहीं है अंदर क्या है, बट यू आर कोडिंग ऑन दैट। सो वो आप कैसे हैंडल कर रहे हो, दैट इज अ डिफरेंट स्किल। तो फिर वो आपको सॉफ्टवेयर साइड पे ले जाएगी। सॉफ्टवेयर साइड पे यही होता है, यू कोड फॉर थिंग्स, राइट। तो वो होता है। तो अगर आपको सॉफ्टवेयर पे स्विच करना है, तो एम्बेडेड सॉफ्टवेयर इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी जिसमें आप कोर और सॉफ्टवेयर दोनों से जुड़े रहोगे। बट इफ यू वांट टू गो इन कोर VLSI, आई वुड से कि go to core roles, digital, analog if you are interested in analog, or embedded hardware you can choose. Right? So that's why I rejected So that. this was the reason why you have chosen TI over Google. Actually, the thing is कि students जब फ्रेशर होते हैं, बेसिकली जब वो ज्वाइन करते हैं किसी कंपनी को, तो पैकेज बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है टू मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कि पैकेज हाई होना चाहिए। बट सी आफ्टर सम टाइम योर पैकेज इज जस्ट अ नंबर जो हर मंथ आपकी अकाउंट में क्रेडिट होगा। इवेंचुअली इट्स योर स्किल्स एंड योर वर्क, वेदर यू आर एंजॉइंग योर वर्क और नॉट। एग्जैक्टली, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई वुड टेल यू कि TI जब आपको इंटर्नशिप देता है, तो उसका जो स्टाइपेंड होता है, दैट्स कंपेयर्ड टू अदर कंपनीज जो फाइनली सेम पैकेज देती हैं PPO के बाद। TI का इंटर्नशिप स्टाइपेंड बहुत कम होता है।
अगर आई वुड से गूगल जो होता है वो गूगल इंटर्नशिप पे आपको देता है 1.5 lakhs पर मंथ ऐसा कुछ इंटर्नशिप स्टाइपेंड। में। हाँ, तो मतलब 1.3 1.4 मतलब वो वैरी करता है। बट आप समझो कि अगर 2 मंथ की इंटर्नशिप कर रहे हो, यू विल गेट अ गुड सम इन योर अकाउंट 2 महीने में। अब क्या होता है टीआई में, यू गेट 60K और उसी टाइप का। सो उससे लाइक बहुत हाफ हो जाता है। लाइक वो लोग गूगल या दूसरी कंपनीज में जितना वो कमा लेंगे 2 महीने में, आप उसका बहुत कम लाइक 30% कमा रहे हो, ऐसा हो जाता है। बट जब फाइनल पैकेज आता है तो टीआई और गूगल का बहुत कंपेरेबल है। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि इंटर्नशिप में अच्छा स्टाइपेंड नहीं है, अगर उनको 2 अपॉर्चुनिटीज मिल रही है तो ज़्यादा स्टाइपेंड वाली इंटर्नशिप पे चले जाते हैं। दे डोंट सी द बिगर पिक्चर कि व्हेन यू गेट कन्वर्टेड, क्या आपको वो स्टाइपेंड इतना मैटर कर रहा है, नहीं कर रहा है। कुछ कंपनीज होती है जो इंटर्नशिप पे बढ़िया स्टाइपेंड देती हैं, बट पीपीओ कन्वर्जन पे स्टाइपेंड कम, तो जो आपकी सैलरी है, तो यू हैव टू चेक कि आगे पीपीओ पे जब आप जाओगे तो आपको कितना सैलरी मिल रहा है। तो आप ऐसे फर्स्ट टाइम फर्स्ट लुक फ्रेशर्स को होता है कि अब पैसा ज़्यादा मिल रहा है, वहीं चले जाते हैं। But I think you should be patient, don't be greedy, and because that would help you when in future In a also, long run. Yeah. in a long run. Yeah. So, Ananya, according to you, what is the best way to practice the circuit design and simulation? Okay, so I think there is a site called EDA Playground. तो Mm-hmm. उस पे यू कैन डिज़ाइन दी सर्किट्स और यू कैन प्ले विथ दीज एंड आर्डिनो वगैरह यू कैन यूज़। एंड सो इट इज़ अ वेरी गुड साइट। एक्चुअली हमारे प्रोफेसर ने हमको फर्स्ट टाइम इससे इंट्रोड्यूस That's an करवाया था। open source tool. Yeah. It's open source, so you can use that. Apart from that, I think what I used for my final year project was cadence का एक आता है। if you use, तो cadence के बहुत सारे tools आते हैं, तो you have to check with your college कि आपके कॉलेज से आपको क्या फ्री में मिल रहा है, और you have to purchase it। तो एल टी स्पाइस होता है, वो एक सिमुलेशन के लिए होता है। बट Mm-hmm. इट्स मोर ऑफ अ रिसर्च थिंग। अगर आप नॉर्मल इंटर्नशिप्स और इस सब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सो यू डोंट नीड दैट मच। आप जो सिमुलेट कर रहे होते हो वो आपका होता है, या तो आप आर्डिनो आईओटी कर रहे होते हो, तो उसके लिए ईटीए प्लेग्राउंड इज गुड। या फिर आप वेरीलॉग या कोई लैंग्वेज से आप कुछ बना रहे होते हो, ठीक है, तो उसके लिए देयर आर मेनी ऑनलाइन वेरीलॉग कंपाइलर्स, सो यू कैन डाउनलोड देम, यू कैन जस्ट ऑनलाइन यू कैन यूज देम, एंड इट्स वेरी गुड। सो आप कुछ भी कंपाइलर पे यूज कर सकते हो, तो उसका उतना इशू नहीं होता है। बट यू हैव टू प्रैक्टिस दैट, तो उसके लिए मेन यू हैव टू हैव अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट विथ यू विच यू आर प्रैक्टिसिंग। सो दैट्स इम्पॉर्टेंट। बाकी आपके कॉलेज लैब्स में भी वो बहुत सारे टूल्स आपको यूज़ करवाते हैं, तो Mm-hmm. वो सब चीज़ें आप अच्छे से कर सकते हो अगर आप कॉलेज के करिकुलम को सीरियसली लोगे। सो यू डोंट नीड अदर टूल्स जो आपको यूज़ करने पड़ेंगे। More or less इंटरव्यू में भी वो आपसे यही एक्सपेक्ट करते हैं that whatever हम्म, you have studied in your curriculum, you should know एग्जैक्टली, the basics, the एग्जैक्टली, fundamental part. Yeah. एग्जैक्टली। वो वहाँ पे आई डोंट थिंक सो मुझे किसी इंटरव्यू में उसने किसी टूल के बारे में कभी पूछा कि विच टूल यू हैव यूज या हैव यू Mm-hmm. सिमुलेटेड। इवन मेरे रिज्यूमे पे फर्स्ट टाइम पे हार्डवेयर प्रोजेक्ट था, लाइक इट वाज Mm-hmm. नॉट अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। आई मेड सम हार्डवेयर प्रोजेक्ट इन फॉर माय लैब एंड सिम, and I Mm-hmm. have put it that only in my resume because at that time I was not having any good project. So they discussed about the project, but they didn't ask me that have you simulated it or something, because they are more keen on what you have learned from the project. So finally coming to the pro level tips part. So as per your suggestion, how students should plan their journey if they are aspiring for a VLSI career? Okay, so if students are aspiring for a VLSI career, I would say they should start taking their curriculum seriously. They should start developing their personality also. For any career, personality is very important. If you don't know how to talk, then it would be impossible for you to crack an interview. And even if you get an internship, it would be impossible for you to get converted to PPO. So your personality really matters. So I would say basically for the study part we have covered in the video, but personality is something very important that I would say students should work on that also. They should be fluent in whatever languages they are speaking. They should, it should not like you should know grammar and everything. You should be able to communicate what you are trying to say to the
audience or to the person who is sitting in front of you. So that's very important, and don't be an introvert. Even you are, if you are doing an internship, I saw many people like geniuses didn't got converted to PPO. Why? Yeah. Because their personality was not corporate friendly. So if you are working in corporate, you have to be corporate friendly, I would say. So, any suggestion from your side to improve the communication skills? I would say take part in extracurricular activities. If your college have some clubs or something, just go there, talk to people, try to take responsibility. POR is, that's why POR is important and it is mentioned in resumes, because then the person is like aware that you have organized this event, so you must have some idea about the teamwork and how the work goes. Because life is not a theory subject, Huh, anything actually, can come, yeah. Hmm. so you have to be prepared for that. So that's very important. And always never assume bad of people. Always think ki people are good even if they are not. So if you are in a company and you are stuck somewhere, never get ashamed to ask for help. You can always ask for help to anyone. Never think ki if I'll ask for help, they'll think ki, okay, he don't know anything or he cannot do this. This is very elementary. Always ask for it and learn it, na. Then only you will learn it. If you'll not ask, you'll not learn. So I said na, most important part is that you learn. So अगर आप सीख गए तो फिर ठीक है ना, तो नहीं आता था सीख गए, उस चीज पे आपको डिसहार्टन नहीं होना कि अब मुझे नहीं आता, अब मैं क्या करूं. So you And can I also. think maximum companies में जो seniors होते हैं, they are very helpful in most of the cases. Exactly, वो जानते exactly. हैं कि एक candidate अगर new है, तो वो हाँ, बहुत support करते हैं उसको. exactly. Resources share करते हैं, काम कैसे करना है, हर एक चीज का idea देते हैं वो. एग्जैक्टली. देयर इज सेइंग कि आप डम हो, ठीक है, आप आए हो, आप डम हो, लेकिन जब आप वो चीज खत्म करो, आप प्रोजेक्ट खत्म करो, दैट टाइम यू शुड नॉट बी डम. उस टाइम तक आपको हम्म. सारी स्किल्स आ जानी चाहिए. ठीक है, नहीं आता है, लोगों को नहीं पढ़ा है, हमारे करिकुलम में नहीं था या हमारे कोर्स में नहीं था उतने अच्छे से, हमें नहीं आता था, हमने सीख लिया ना, वो इम्पोर्टेंट है. क्योंकि दुनिया में आपको हर चीज नहीं आ सकती, पर सीख आप सब कुछ सकते हो. So I would say that thing is very important for a student to understand apart from the things that we have discussed. And yes. Any specific mistake that you have done and students should know, should avoid that? Okay, so I would say that I panic a lot and students should not, because Okay. okay, so because like initially I told you na, everything is like my life took me to that way and I went. Hmm. So I panicked a lot ki what if this will not happen. When I got my first internship, उस time पे I applied for core and non-core both roles. Hmm. So I was like ki what if I didn't got selected in core non-core. So I was basically focusing for IT sector and I got selected in core. Then I panicked again ki I got selected in core and I was focusing in IT sector. So I would just do the internship and then I'll like bring my focus back to IT sector and I'll do DSA and everything. So when I did the internship, I was like, this is the thing that I wanted to do. So if I have explored it earlier, maybe I would have opted for core only. I would not have focused in non-core things or IT department. But I panicked a lot. So at that time, I was like, okay, now I'm interested in core. I got the internship, I did the internship. Now what? How to proceed? Then I panicked again. Then I applied for some companies. Although I got the PPO, so before that I panicked. Okay, let's apply to Google. What if we Hmm. got selected? So that's the way. So you should not panic. Life will give you a way. If it is closing one door, another door will get opened. So don't panic and be clear. And see, दो तरीके के स्टूडेंट होते हैं. वन इज द रिजिड वन कि मेरा बचपन से ड्रीम था VLSI में जाने का, मैं तो VLSI करूंगा. उनके लिए आई वुड से जस्ट स्टे ऑन द रोड एंड बी पेशेंट. एक दिन मंजिल आएगी, तो पेशेंस रखो अपने में और जस्ट मूव फॉरवर्ड, स्टार्ट लर्निंग. और फिर अगर आपको आता है ना, तो वो कंपनी भी तो वही इंसान ढूंढ रही है ना जिसको आता है. तो कहीं ना कहीं वो ले लेगी आप. तो Hmm. बेसिकली देयर इज सप्लाई एंड डिमांड. आप उसके काबिल हो अगर रोल के, और वो भी कंपनी भी एक पर्सन ढूंढ रही है जो काबिल है, आप एक कंपनी ढूंढ रहे हो जिसको काबिल पर्सन चाहिए, तो Hmm. कहीं ना कहीं ब्लॉक्स विल जॉइन. बट अगर आप सेकेंड कैटेगरी में आते हो कि आपको पता ही नहीं आपको करना क्या है, Hmm. ठीक है, तो आई वुड से कि
एक्सप्लोर एवरीथिंग। इट्स नॉट लाइक कि लोग जाते हैं पैसे के कारण आईटी सेक्टर्स में, कि पैसा है तो हम डीएसए पढ़ लेते हैं और आईटी सेक्टर में बहुत जॉब है, कंप्यूटर साइंस में मिल जाएगी, एंड ज़्यादातर लोग आज वहीं जा रहे हैं, सो पीपल टर्न दैट वे। बट दे थिंक कि कोर में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट। और बट ऐसा कुछ नहीं है, लाइक एवरीवेयर देयर इज कंपटीशन। जहाँ पे कैंडिडेट्स कम है वहाँ पे डिमांड भी तो कम है, यू कैन सी दैट वे। सो फाइनली एवरीवेयर इज कंपटीशन। और ऐसे जो लड़कियां हैं उनके लिए अभी कोर में इज वेरी वास्ट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि जनरली लड़कों को डिसहार्टन नहीं कर रही, बट जनरली कंपनीज अभी गर्ल्स बॉयज रेशियो को अच्छा करने के लिए, मेंटेन करना चाह रही है। हाँ, मेंटेन करना चाह रही है, अच्छा करना चाह रही है। वीएलएसआई इंडस्ट्री में बहुत कम लड़कियां हैं, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में आज हैं लड़कियां सिग्निफिकेंट अमाउंट में, बट स्टिल आई फील कि सिलिकॉन इंडस्ट्री में नहीं है। और बहुत सारी कंपनी इसके लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स ले रही है, जो बहुत अच्छी बात है। मैंने बताया वो टैलेंट स्प्रिंट वाला था, वो ओनली फॉर गर्ल्स था। ऐसे ही टीआई का एक आता है शी प्लस प्लस करके, शायद वो भी, सॉरी ऊबर का आता है एक शी प्लस प्लस, वो गर्ल्स के लिए होता है। ऐसे ही टीआई का भी एक आता है वी या विश करके कोई प्रोग्राम होता है, वो भी गर्ल्स के लिए होता है, विमेन इन सेमीकंडक्टर। तो गर्ल्स के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज है, सो यू कैन एक्सप्लोर दैट थिंग ऑल्सो। और जो लड़के हैं उनके लिए ऐसा नहीं कह रही हूँ, नहीं है, इट्स लाइक वीएलएसआई में मुझे नहीं लगता है, लोग कहते हैं रिसेशन आ रहा है, ये आ रहा है, आई थिंक वीएलएसआई में जॉब्स कभी खत्म नहीं होंगी, बिकॉज वीएलएसआई समथिंग हार्ड। अगर आप कोई बहुत बड़ा चैट जीपीटी भी काम कर रहा है तो कर तो कुछ सर्वर्स पे रहा है, सर्वर्स बने तो कुछ चिप्स है ना, वो चिप्स तो बनेंगी ही। इफ रोबोट इज देयर देन देयर इज सम इलेक्ट्रॉनिक्स इन्वॉल्व, इलेक्ट्रॉनिक्स इज एवरीवेयर। सो या ऐसा स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि अब एआई आ गया है, तो क्या वीएलएसआई में भी जॉब्स रहेंगी कि नहीं रहेंगी बिकॉज ऑफ एआई? एआई से वीएलएसआई में जॉब रहे ना रहे, स्टूडेंट शुड फोकस कि नाउ दे हैव टू लर्न द न्यू टेक्नोलॉजी। और आप ऐसा समझिए ना कि आप किसी रेस में थे, उसमें बहुत सारे लोग थे जो बहुत दिन से काम कर रहे थे, आपसे अच्छा काम कर रहे थे, ठीक है, वो आपसे आगे थे। नाउ एक डिफरेंट रेस आई जिसमें सब जीरो पे फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको फिर से मौका मिल रहा है। तो आप न्यू टेक्नोलॉजी को ऐसे मत लो कि इट्स वेरी हमारी जॉब खा जाएगी या फिर सबको। आप ऐसे लो कि अभी किसी को नहीं आता है, तो जो पहले सीख लेगा वो उस चीज में आ जाएगा। सो बेसिकली लाइफ इज गिविंग यू अ न्यू स्टार्ट विद अ न्यू टेक्नोलॉजी, और हमेशा न्यू टेक्नोलॉजी आएगी, हमेशा न्यू स्टार्ट आएगी, यू हैव टू कीप योरसेल्फ अपडेटेड फॉर दैट। सो दैट्स व्हाट आई वुड से, ये स्टूडेंट को करना चाहिए और पैनिक नहीं करना चाहिए, बी पॉजिटिव। फाइनली आई वुड लाइक टू से सम लाइंस जो मैंने लिखी थी, और ये लाइंस प्लीज। उस, यस, सो ये लाइंस उस चीज़ पर है कि इट्स इट्स लाइक बी कॉन्फिडेंट, और जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उस पे ही है। सो सी, इफ यू बिलीव कि यू विल सक्सीड वन डे, तो यू विल सक्सीड वन डे। इफ यू बिलीव कि मेरे से नहीं हो पाएगा या क्या नहीं कर पाऊंगा, तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। तो मुझे पता है वहां तक कैसे पहुंचना है, मुझे ये इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे पता है मुझे वहां तक पहुंचना है। फर्स्ट यू हैव टू सेट द गोल, यू हैव टू सेट द थिंग्स, उसके बाद यू कैन अचीव। कैसे अचीव करना है नहीं पता, बट अगर आप सपने देखोगे ही नहीं तो सपने सच कैसे होंगे। या ट्रू। एग्जैक्टली exactly। तो इस पे मैंने लिखा था कि इफ यू थिंक, अगर मैं सोच लेती हूँ कि हाँ मुझे मेरी मंजिल मिलेगी ही, तो उस पे था कि जब पता हो मंजिल मिलनी ही है तो रास्ते खुद ब खुद मिल जाते हैं। जब पता हो मंजिल मिलनी ही है तो रास्ते खुद ब खुद मिल जाते हैं। जब हौसला हो उड़ना ही है तो पर मेहनत के निकल आते हैं। और जब विश्वास हो चलना ही है, जब विश्वास हो चलना ही है, तब जुनून हो, तब कांटे भी फूल बन जाते हैं। जब पता हो मंजिल मिलनी ही है, जब पता हो मंजिल मिलनी ही है तो रास्ते खुद ब खुद मिल जाते हैं। और जब हौसला हो उड़ना ही है, जब हौसला हो उड़ना ही है तो पर मेहनत के निकल आते हैं। और जब विश्वास हो चलना ही है, जब विश्वास हो चलना ही है तो कांटे भी फूल बन जाते हैं। कि जब जुनून हो कि करना ही है, तो यकीन मानो दोस्तों, हम जैसे भी कमाल कर जाते हैं, हम जैसे भी कमाल कर जाते हैं। क्या बात है अनन्या, क्या बात है, वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल। बहुत ही थैंक अच्छा यू, लिखा है आपने। थैंक यू। सो ओके। आई वुड से कि कोई भी कुछ भी कर सकता है, जस्ट कीप ड्रीमिंग, कभी ऐसे सपने खत्म नहीं करने चाहिए। या एक जस्ट दिन मैं कीप ऑन पॉडकास्ट, ट्राइंग। सपने देखना एग्जैक्ट, बंद मत करो, कोशिश सपने करना बंद देखना, मत करो।
एग्जैक्टली लाइक एक दिन ऐसा था कि मैं अपने किसी सीनियर का पॉडकास्ट ले रही थी और मैं उनको कह रही थी कि मैं सोच रही थी कि वाओ उनने लाइफ में इतना अचीव किया है। आज से 4 साल बाद फर्स्ट ईयर में थी तब मैं, आज से 4 साल बाद क्या मैं ऐसा कुछ कर पाऊंगी कि मैं किसी से शेयर कर पाऊँ या मेरी लाइफ से कोई कुछ सीख पाएगा। बट आज 4 साल बाद हम यहाँ पर हैं तो Finally, you are giving एग्जैक्टली the motivation to students. एग्जैक्टली सो ये कभी ऐसे सोचा नहीं था तो इट्स लाइक हाँ ये सपना देखा था कि काश 4 साल बाद भी मैं वहां पर हूँ। कैसे होंगी क्या होंगी मुझे कुछ पता नहीं था। तो इफ यू डोंट ड्रीम देन ड्रीम्स कैन नॉट कम ट्रू, सो यू हैव Yes, टू yes, सी correct. योरसेल्फ। एग्जैक्टली। So Ananya, overall it was a very nice session. बहुत कुछ अच्छा जानने के लिए मिला and I hope students के लिए भी ये उतना ही informative होगा. So thank you so much Ananya for coming and sharing your experience. Students को अगर कोई भी doubt है then guys you can follow Ananya on LinkedIn and you can ask your doubts also. So thank you so much Ananya and all the best for your bright future. थैंक यू सो मच श्वेता।